आम सांगे सरोज कुमार आज आम सांगे सरोज कुमार डोरा सर अच्छा विषय सेशन स्टार्ट हवा आगु विषय हमको इंट्रोडक्शन करेंगे सांगे भल कर परिचय कराइबे मु प्रदीप सुधार सर को रिक्वेस्ट करुच्ची हमको परिचय करंतु तापर सरोज सर सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सत्यजीत। परेश जी हैं क्या? यस सर, नहीं है। ओके, थैंक यू। अरे अरे अरे, आपका प्रेजेंस जरूरी है क्योंकि हम लोग भाषा चेंज कर देते हैं नहीं तो आपके वजह से। सर वैसे ओडिया में भी बोलने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा समझ में आता है मेरे को। नहीं, वो यूट्यूब में जाएगा ना तो फिर दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir. So it's a great opportunity for us to have Saroj Dora, who is from Odisha, basically Sambalpur, and he is associated with Sony India, New Delhi, and now he is looking after East region, and he is a alpha specialist and technical head for East region Sony India. Saroj, he's conducted more than 600 photography workshop across India. So for the time being, he is working with Sony India, New Delhi as a professional and camera specialist and as a mentor and advisor. It started his journey of photography from his college career. So he started his photography journey with Kodak KV10 camera from a small town in Odisha, Sambalpur or somewhere, I don't know, somewhere else. We thought it's maybe Sambalpur. But so he used to process black and white films in dark room, mixing chemicals, developing own way, and cross-processing negatives, films. So he is from that era. So where we are giving our roles to the our studios to develop. So he used to do that one for his work and for others' work also. Then he moved to Mumbai. Then he worked with Hindustan Times a long time as a photojournalist. And he worked with Bollywood personality, and he worked for Bollywood बहुत अच्छे अच्छे लोगों के लिए वो काम किए हैं, उनका लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत काम किए हैं, और बहुत सोशल इश्यूज के ऊपर भी बहुत कवरेज किए हैं. During his Hindustan Times journalism, as a photojournalist, so he has covered multiple issues like Mumbai attacks, Mumbai triple blast, Naxal attacks, and social political issues and many more. Since now the works is published multiple national and international organizations also, and he is felicitated by London magazine for the image creator of the year in London 2012. So we are proud of him that from Odisha is it's a asset for Odisha in a photography line. So nothing more to say about him. He's a alpha specialist. So all the Sony alpha camera menus are in his heart. Anytime you can ask about Sony camera related any issues, he is ready to answer you at the midnight or at the early morning. He is ready to answer you, and we are very much grateful to him. So we'll listen today. We'll listen to him. We'll see his work, and we should inspired by him for his work. Thanks. So now Saroj sir can take this session further. Thank you, Pradeep sir. Thank you so much for your kind words. Okay, it was a very long introduction actually. Anyway, let's continue with this session. Okay, so in short, like now the session is getting recorded, so I will just want to declare something like that. Whatever content I want to show here, these are personally my content. Okay, so because I work with Hindustan Times as a journalist, as a photojournalist. So the content what I created, those images what I saw, so strictly for me and for like the syndication.
Okay, so any kind of if someone is claim that these are my images, then it will be I can say that it's maybe Hindustan Times can take action, or someone else can take action according to the policy. But anyway, you don't worry, guys. It's completely for you, and just for a presenting purpose. Okay. So of course, it's a video session. Of course, if you want to have any print screen of the images, then please don't share with anyone. It's for your use, for your knowledge. And I'll show you a lot of intense images also. Okay, a couple of basics images, because what do you say? The subject is very vast subject. It's a street and journalism, and completely in the public places. The images are completely public places and has a lot of copyrighted acts, copyrighted issues. Okay, so I will let you know all the information accordingly. So, जैसे कि I had attended your session earlier, and as you know that English and Hindi is compatible with you guys, so I'm okay with the English and Hindi. If you want to say in Odia, then I'm okay with Odia also, Sambalpuri also. But as you wish, आपको जैसा अच्छा लगे, you can just let me know. And I hope my voice is clear to you all. So kindly confirm that my voice is clear, so we'll proceed accordingly. Yeah, it's clear and loud. Fine. Thank you so much, Pradeep. Thank you. And first of all, I just thankful to all the participant member. Okay, all the organizing member, and of course those who are attending the session. I just heartily welcome to them for this session. And let's continue. Let's start. So let me share my screen here. First of all, so. Okay, guys, you can see my screen. If anyone has any issue, please let me know. And if the session gets a little bit longer, then don't mind. Okay, so there is a lot of content, so I will try to get you as much as quick possible. So hope you can see my screen, right? Anyone confirm, please? Yes. Yeah, it's clear. It's clear. Yeah, fine. Thank you so Yeah, much. yes. So first of all, this is our community. As Pradeep sir has introduced me. I work for Sony as a photo mentor, advisor, and specialist. Okay, and of course, technical in charge for the East India. So anyway, that's my profile for Sony India. But my earlier profile, whatever. Today we are talking morely into images and photography, not into the technical. Okay, so don't mind and don't worry that if I'm a Sony guy, then I will talk about the technical parts only. So I don't want to take technical right now in this session. I will show you some images and I will elaborate how the images has been taken. So if you want to contact me, of course, you can write me on saroj.dora@sony.com if you have any queries or any feedback, or you can go through my Insta handle is Saroj K Dora. Okay, so you can follow me or ping me on there also. All right, so let's move. So let's go to street and journalism photography. So what is street and journalism photography? This is one of the image. एक image है जो आपको मैं अंदर जाके describe कर दूंगा. It's just a presentation purpose. So the presentation is very short, but images are very बहुत सारे images हैं. So be with me. So what is street photography? I don't have to say anything about that. You know, guys, you are already, the masters are here, and of course we are doing street photography. So this is basically a small presentation purpose. So maybe you may go through this, of course, write up. So street photography conduct for art inquiry that feature
immediate chance encounter to random incident within the public place. Okay, so this is all street photography. What is the purpose of photography? Simply put, street photography aims to capture everyday life in public place, particularly in urban landscape. Okay, urban landscape भी हम उसको बोल सकते हैं. So if we go to journalism photography, so of course journalism is a particularly form of storytelling process. We'll use camera to capture the visual presentation of the story. Okay, so most probably journalism is different types of journalism है. तो different type of journalism में हम किस type के journalism को basically cover करते हैं, that is investigate, news, review, columns and feature writings. Okay, so इस सारे journalism में हर journalism में आपको photograph की जरूरत है. Even a writer एक journalist होता है कि एक जर्नलिस्ट एक राइटर जर्नलिस्ट भी होता है, एक फोटो जर्नलिस्ट भी होता है. ओके, एक कंटेंट राइटर्स भी होता है, एक फोटो जर्नलिस्ट भी होता है. सो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में फोटो जितना इम्पोर्टेंट है, राइटअप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो न्यूज में, रिव्यूज में, ओके, कुछ चीज को रिव्यू करना है, उसका इमेजेस उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि उसका राइटअप उतना इम्पोर्टेंट है. अगर आप खाली रीड दोगे, उसको खाली राइटअप दोगे तो वो बोर हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा. खाली फोटो दोगे तब भी वो इंटरेस्ट नहीं लेगा इतना ज्यादा. आइदर वो फोटो इटसेल्फ है वेरी पावरफुल फोटोज, देन इट्स ओके, otherwise it's quite difficult for him to understand that photos, or maybe he'll skip and move forward. So accordingly we need images as well as the write up. दोनों ही उतना ही बॉन्ड रखते हैं, दोनों का बॉन्डिंग इतना ही स्ट्रॉन्ग है, तभी जाके एक न्यूज उसको कवर कर पाता है, एक पेपर में उसको जगह मिलता है. ओके, देन कॉलम राइटर्स हैं, feature writers हैं, so a lot of types of journalism are there. So in street journalism, photography is creepy. So is street photography or journalism photography is creepy? So the biggest difference we'll see that the street photography is defined to being with the public place, in the public place, while photojournalism has no such limitations. Okay, so जैसे हम सिंपली जानते हैं कि पब्लिक प्लेस में हम लैंड स्ट्रीट फोटोग्राफी में हम पब्लिक प्लेस को यूज कर सकते हैं विद द लिमिटेशंस. ओके, with the limitation, why the limitation was because maybe someone will create a buzz, someone will maybe create nuisance, someone maybe take objections. Okay, हर जगह पे हम स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, बट पब्लिक प्लेसेस में किसी जगह पे हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, हमको वो अलाउ होता है. If someone is taking objection, then we have a lot of other subjects we just have to move on. ऐसा नहीं कि हमको ये शूट करना है. अगर हमको वो शूट करना है, then we should have prepared for that. Our camera and lenses has to be prepared for that. कि भाई वो बोलने से पहले ही हम फोटो क्लिक करके वहां से चले जाएं. That is how the street photographers always work. Okay, if you take a lot of time, then what happened that if it's a critical subject, if it's a different subject which is not regularly seen in the market, then ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. बट नॉर्मली क्या होता है स्ट्रीट फोटोग्राफी में, ये भी बोला जाता है कि यू टेक परमिशन फर्स्ट देन यू कैन क्लिक. some people, there is a lot of different scenario होता है स्ट्रीट फोटोग्राफी में कि आप कुछ फेसेस शूट करना चाहते हैं, कुछ अर्बन लैंडस्केप शूट करना चाहते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल पोर्ट्रेट शूट करना चाहते हैं स्ट्रीट के साथ. Okay, portrait is not mean that only portrait, it's an environmental portrait. So of course you have to shoot the portrait with the environment and you have to ask the person, take the permission of the person कि मैं आपका फोटो शूट कर सकता हूँ क्या. If it's okay, then you have lot of chances, lot of space. आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी बच जाता है तभी आपको शूट करने के लिए, क्योंकि उसने अलाउ किया है. You can use your creativity and click the pictures and make it as much as beautiful. अगर वहाँ पे वो अलाउ नहीं कर रहा है, but you know that the subject is very creepy, okay, and तो थोड़ा सा problems हो सकता है, but the subject is beautiful, आपको करना ही है वहाँ पे शूट करना है. Then you have to get ready, click, जो भी आपको एंगल मिल रहा है, जो भी शॉट्स मिल रहा है, immediately आप शॉट क्लिक करके वहाँ से चले जाओ before he shout you, before he throw a stone to you. Okay, so ये एक्चुअली एक स्ट्रीट का बेसिक्स होता है जो हम स्ट्रीट पे काम करते हैं. सम प्लेसेस आर जैसे कि आप जाते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, लाइक बनारस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए माना जाता है.
So Banaras में आप जाओगे तो people used to it. Okay, they are used to it that thousands of photographers every month are coming to shoot the street of Banaras. तो वहां पे आप जाओगे, nobody will take objection. आप कहीं पे भी फोटो शूट करोगे, आपको easily they smile in front of your camera. Okay, they allow you to shoot. अगर आप उनको बोलोगे कि यहाँ पे मुझे कंपोज करना है, आप यहाँ पे उसको एंगल पे आप खड़ा करना चाहते हो, still they will ready to, मतलब आपके लिए पोजिंग भी कर सकते हैं वो लोग. So this is how maybe street operate. But जर्नलिज्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट. जर्नलिस्ट फोटोग्राफी, ओके, ये बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट होता है. यहाँ पे आपको किसी का परमिशन लेना पड़ता है. उससे पहले आप कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा शॉट्स होता है जो आपके लिए इन्वेस्टिगेशन शॉट्स है, भले वो स्ट्रीट में है बट इन्वेस्टिगेशन के लिए हो रहा है. कभी कभी आपका पावर यूज करना पड़ता है, दैट आई एम फ्रॉम प्रेस एंड आई वांट टू शूट हियर. कभी कभी आपको पावर के साथ साथ आपको एप्लीकेशन जो एफिलिएशन का लेटर होता है, या मे बी मुंबई या दिल्ली, और आप जैसी भी प्लेस में शूट कर रहे हो बीएमसी लेटर से या मे बी कमिश्नर लेटर से, तो आप उसका पावर भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द जर्नलिज्म अलाउड दैट. सो इस जगह पे कोई भी बंदा अगर ऑब्जेक्शन ले रहा है तो वो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है, बिकॉज दिस इज व्हाट ऑन द like there is no limitation के बार के अंदर वो आता है. So because of that journalism is quite different than street, क्योंकि स्ट्रीट एक आर्ट की तरह है, जर्नलिज्म आर्ट के साथ साथ एक प्रेजेंटेशन, एक स्टोरी के साथ जाता है, जो आपको जर्नलिज्म में यूज होता है. So वेरी सिंपली एक फोटो जर्नलिस्ट का वॉकिंग स्टाइल क्या होता है. So let me tell you a small story here. So basically how I into photography, how I into photojournalism basically. So as he discussed that I started from a small town like Bargarh and doing black and white negative processing in the dark room, color processing and all. Then I switched to the bigger town like Sambalpur. Then I work here. I do for the photo labs, do the color processing and all. Then I moved to Mumbai to pursue my career, because I know by profession I will be good in photography, I will be good in color processing, and I will be good in editing. So मैं इसके लिए क्या है, मैं मुंबई is the only place for me that कि भाई मैं सोचा कि because that time I was very young, like 18-year-old जब मैंने काम स्टार्ट किया था. एंड इन 22-23 में मुंबई मूव कर गया था. मुंबई में मैंने ये करियर शुरू किया था. तो दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है. आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई जस्ट नो दैट आई कैन क्लिक द पिक्चर, आई कैन take good picture. That's it only, nothing else. So I just go roaming around the studios. सबके पास जाके मैंने मेरा पोर्टफोलियो दिखाया. I show them the images, ask them to take me, मतलब मुझे जॉब दो, ये करो. So this is how the struggling part was. Then I somehow joined Hari Mahidhar sir. He insist and they give me the chance that I like my images and all. And वो बोले मैं तुझे सिखाऊंगा. I will teach you and guide you and I will take you to another level. Then I joined the Hari Mahidhar sir in Mumbai, and I do a lot of commercial works, advertising works, models, lights. Okay, so industries. So there is all the big works. I have a lot of was different, but I'm just saying you story how it narrate, because journalistic work is always a storytelling work. Okay, so this is how I'm just telling my story. If you present me, then how you have to imagine, how you can imagine that story and you can click the picture and you can present. That's the actual point. So I will show you some documentary images also. I have done some documentaries also. So then I work with a lot of celebrities and all. Then I just get fed up with that. Okay, then I got fed up with that. Then after a period of time, he said that now this is enough. You have learned many things, and now I can't feed you. You have to move on. So he said me, I can't feed you, and you have to move on. Then I have to find out another job, of course. So I tried for Hindustan Times, and of course I got the job in Hindustan Times.
So I joined Egypt, first of all, being a normal, how I joined, let me tell you. So I joined as an onboard photographer here. Okay. So I joined as an onboard photographer here. So when I joined, there was a lot of scenes there. Like, there is a lot of onboard photographers there, as well as there was a lot of freelancers out there. Okay. So onboard photographer भी हैं, freelancers भी हैं. onboard photographer का काम different है, freelancer का काम different है. Then और कौन है? सेल्फ थॉट फोटोग्राफर्स है, जो कॉलमनिस्ट है, स्टोरी टेलर्स है. ओके. सो जो सेल्फ थॉट फोटोग्राफर है, इन द सेंस वो अपने थॉट्स पे ही काम करते हैं और वो इमेजेस को एडिटर्स को शो कराते हैं. इफ द एडिटर और द कॉपीराइटर लाइक द स्टोरी, देन ही प्रिंट आउट. ओके. सो उसके बेस पे उनको पैसा मिलता है. फ्रीलांसर हम उनको हायर करते हैं जहाँ पे ऑनबोर्ड फोटोग्राफर नहीं जा पाते हैं. जहाँ पे सपोज मैं नहीं जा पा रहा हूँ, because suppose example in the midnight around 2 o'clock or 3 o'clock I'm ready to move to shoot the picture. Okay. If somehow in my area if कोई एक सीन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है and I feel sick, then what happened? Then I allow the freelancer to move on to click the picture, and for picture we provide them the amount. So क्या होता है कि हम उनको पैसा देते हैं उसी हिसाब से कि अब मैं जा नहीं पाया हूँ वहां पे, और तुम पिक्चर क्लिक करो, उस पिक्चर को तुम रिलीज कर दो. सो ऑन बेसिस उनको जितने पिक्चर्स उनके छपते हैं उस पिक्चर के ऊपर उनको पेमेंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है. और वो पिक्चर्स उनके हर पिक्चर का प्राइस डिसाइड होता है. अगर वो स्पेशल स्टोरी है तो उनका प्राइस अलग है. ठीक है. देन सेल्फ थॉट फोटोग्राफर किसको हम बोलते हैं? तो सेल्फ थॉट फोटोग्राफर जैसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं. एग्जांपल रघु राय जी. ओके. सो ही इज अ सेल्फ थॉट फोटोग्राफर, ही इज अ सेल्फ थॉट फोटो जर्नलिस्ट. ओके. कॉलमनिस्ट एंड ऑफ कोर्स स्टोरी टेलर्स. सो उनका क्या होता है कि once he was a on-board photographer, but after a period of time he left and he joined as a self-taught photographer. क्यों छोड़ा, क्यों ज्वाइन किया? There was a long of story. मैं बाद में आपको ये जैसे ये आपका पीपीटी बढ़ता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा. इट्स अ वेरी शॉर्ट वाइल. सो वो छोड़ के वो चले जाते हैं और उसके बाद सेल्फ थॉट फोटोग्राफर हो जाते हैं. क्योंकि सेल्फ थॉट फोटोग्राफर का जो टॉपिक्स होता है, जो इमेजेस होते हैं, वो सेल्फ प्रोसेस होते हैं, सेल्फ थॉट प्रोसेस होते हैं. और दे हैव टू कन्विंस टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर और द मीडिया हाउस टू प्रिंट दैट. ओके. उनको कन्विंस करना पड़ता है, उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है. अदरवाइज देयर इज नो थिंग्स एंड ही हैव टू स्पेंड ऑल द मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. इवन इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, इफ इट्स एनीथिंग लाइक कोई भी सब्जेक्ट हो. ऑनबोर्ड फोटोग्राफर इस वो काम करे ना करे, he will be paid because of his on-board photographer. Okay, so I was an on-board photographer. Then I have seen that there is a lot of freelancers are working because on-board photographers are sometimes very lazy. Okay, because of course very. I don't mean to say or I don't mean to comment it here. If someone is an on-board photographer for any things, then pardon me. But I know that's the fact. Okay. Then how they picture, what are they capture? So क्या क्या इमेजेस होता है? यहाँ पे मैं आपको इमेजेस का कुछ चीजें वर्णन करता हूँ, फिर आपको मैं इमेजेस पे ले जाऊंगा. यू विल फाइंड एक्चुअली होता क्या है, इमेजेस कैसे होते हैं. ऑफ कोर्स यू हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेरे जो इमेजेस है वो मेरे पर्सपेक्टिव में है. आइदर आपको थोड़ा सा बहुत वो पसंद भी आएगा. आई एम होपिंग दैट. सो ऑफ बीट्स, स्टैंड अलोन्स, सो जिसको हम फिलर बोलते हैं. ओके. ऑफबीट स्टैंडअलोन जिसको हम फिलर बोलते हैं, एक्चुअली ये पेज को फिल किया जाता है. और स्टैंडअलोन का मतलब, ऑफबीट का मतलब ये है कि द इमेज अकेले ही प्रिंट होगा. ओके. देयर विल बी नो स्टोरी विद द इमेज. इट्स अ स्टैंडअलोन स्टोरी. द इमेज इटसेल्फ से 1000 वर्ड्स, लाइक हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि एक इमेज 1000 वर्ड बोलता है, 1000 स्टोरी बोलता है. एंड उतना पावरफुल इमेज होगा तब जाके ये जाएगा. अगर वो नॉर्मल है उतने उसमें उस इमेज में पावर नहीं है तो वो स्टैंड अलोन आपका नहीं जाएगा. ओके. एंड whoever the फोटो जर्नलिस्ट कम अक्रॉस, और वो जब ऊपर आते हैं काम करते करते, तो उनका सबसे बेस्ट पॉइंट होता है स्टैंड अलोन.
जब वो ज्वाइन करता है उसको भेजा जाता है स्टैंड अलोन शूट पर। मतलब तेरा कितना क्रिएटिविटी है वो देखना चाहता है एडिटर, वो उसको भेज देगा आपको कि ऑफबीट स्टैंड अलोन शूट पर तेरे को कोई स्टोरी नहीं मिलेगा, कोई इवेंट कवर के लिए नहीं मिलेगा। यू हैव टू रोम द सिटी अराउंड and take the standalone picture, and the picture has to be say 1,000 words. Okay, so if the picture is strong enough with very kind, with very different from the other photojournalists, then it would be go for the print. और frankly एक बात बताता हूँ कि maybe the image का value आपके लिए सालों साल रहे, आपके पर्सनल के लिए सालों साल रहे, बट एक जो न्यूज़पेपर के लिए वो फिर जो इमेज होता है उसका वैल्यू फॉर एक दिन के लिए होता है, फॉर ओनली 1 डे। नेक्स्ट डे उस इमेज को कोई नहीं छापेगा, ना उसका प्रिंट वैल्यू है, ना ही उसको ये, वो क्या होगा, सीधा आपके लाइब्रेरी में चला जाएगा। नो यूज ऑफ दैट इमेज। सो एवरी फोटो जर्नलिस्ट हैज टू बी क्यूरियस दैट कि भाई आज मेरा पिक्चर ही जाएगा। अगर मेरा पिक्चर जाना चाहिए, इट हैज टू बी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो पिक्चर ही जाए, बाकी सबको वो नीचे करे। सो ये होता है एक स्टैंड अलोन इमेज का वैल्यू। इसके लिए क्या होता है कि हर कोई लड़ाई करता है। इफ रेगुलरली अगर आप स्टैंड अलोन पिक्चर आने में परफेक्ट हो, देन द एडिटर विल गिव यू अनदर चांस फॉर द सप्लीमेंट्स। ओके, जिसको हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं। तो उसमें क्या चांस देता है आपको, फूड प्रोफाइल एंड पेज 3। फूड प्रोफाइल और पेज 3 के लिए काम के लिए आपको वो चांस देगा कि आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। यू विल गेट चांस टू गेट फूड शूट्स, आपको फूड शूट के लिए भेजेगा, कोई भी स्टोरी के साथ जा रहा है। ओके, प्रोफाइल शूट्स के लिए भेजेगा, जब बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं। कैसे प्रोफाइल्स होते हैं कि आई विल शो यू सम इमेजेस ऑफ द प्रोफाइल्स। ओके, देन पेज 3 के इमेजेस आई, यू नो दैट पेज 3, व्हाट इज पेज 3। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली पेज 3 में फ्रीलांसर ज्यादा काम करते हैं, बिकॉज दे रोमिंग अराउंड द सिटीज, और वो एयरपोर्ट के पास बैठे रहना, उनके घर के सामने बैठे रहना, ये सारी चीजें ऑनबोर्ड फोटोग्राफर नहीं कर पाते बिकॉज दे आर लिमिटेड, बट फ्रीलांसर्स आर ओपन टू डू दैट। सो पेज 3 ज्यादातर वो लोग ही काम करते हैं, बट समटाइम देयर विल बी अ बिग स्टोरी coming up, like as an example that like Sanjay Dutt, when it's a page 3 part, Sanjay Dutt, when it's a celebrity, it's a page 3 part, but when he arrested for the Yerwada jail for the weapon, जो उसका ये था इशूज था, वेपन वो रखा था उसके लिए, जिसको जेल हुआ, इन दैट टाइम जब वो घर से निकला उसको पुलिस अरेस्ट किए, टिल यरवाड़ा जेल ऑफ पुणे एक ऑफिशियल ऑनबोर्ड फोटो जर्नलिस्ट वहां पे अपॉइंट होता है, वो उसको फॉलो करता है, वो स्टोरी उसके पास चला जाता है। But if it's a page 3 like the night parties and all, then the page 3 are the freelancers basically do the things. Then another step of that photojournalist, उसको एक step आगे बढ़ना है, then he have to cover events and programs, that is cover up stories. Okay, then another story, he has to go for the special stories, the presentation work. स्पेशल स्टोरीज कहाँ पे होता है, जैसे कि रिपोर्टर के साथ आपको जाना होता है, रिपोर्टर के साथ स्टोरी कवर करना है। ऑलराइट, मे बी क्रॉपिंग का स्टोरी है, मे बी फार्मर स्टोरी है, मे बी डिफरेंट स्टोरी है, मे बी माल न्यूट्रिशन का स्टोरी है। सो डिफरेंट स्टेट में जाना है, डिफरेंट गाँव में जाना है, कवर अप करना है स्टोरीज को। ओके, ये होता है स्पेशल स्टोरीज का पार्ट, एंड दैट टाइम यू विल बी अपॉइंटेड एज विल बी ए 4-step फोटोग्राफर देयर। ओके, जिसको हम स्पेशल फोटोग्राफर्स बोलते हैं। Then the general news. After इतना सारा करने के बाद जब उसको confidence आता है, the journalist will work perfect here, then he will send you for the general news, which is market. Market में क्या चल रहा है, okay, कहाँ पे मतलब BMC ने problems create किए हैं, कहाँ पे क्या issues हो गया है, so market issues के ऊपर वो basically काम किया जाता है। Then the final thing is like the hardcore news, crime and politics. So hardcore news सबसे लास्ट होता है, they are the special like correspondent photographer होते हैं, या like deputy chief photographer जो hardcore news mostly cover करते हैं। okay, और sometime अगर उनके availability नहीं होता है तो other photographers भी कर सकता है, but it's very tricky हो जाता है उनके लिए, because hardcore news, crime, politics के लिए आपका knowledge not only photography, आपका market का knowledge भी होना चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेशन नॉलेज भी होना चाहिए, आपका जो सोर्स है उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्राइम सीन हुआ है, एंड यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू टेक द न्यूज अपार्ट।
मतलब उस अंदर से भी आप थोड़ा सा स्टोरी निकाल सकते हो, जैसे only not only you have to cover the photos of the crime scene or maybe the political scene, but उसके साथ साथ उसके अंदर का स्टोरी है, किसने मर्डर किया था, पुलिस वालों से बात करना, इससे बात करना, थोड़ा सा न्यूज आप कवर अप कर सकते हो तो बेटर है। ये सारी चीजें जब जाते हो then you will be covered in the hardcore news. So in that situation I have almost covered of standalones, okay, food, then events, then special stories. So special stories के लिए I mostly move to like Matheran, I move to Khandala. There is a lot of strawberries, like the mother strawberries plantations, how it's come, how it's selling in the market. काफी photo features किए हैं इसके ऊपर. Not only I'm just giving you one example, okay. Then general news always is the market news. Then hardcore news में crime, politics में I have covered a lot of things. He said that Mumbai Taj attack, then the triple blast of Mumbai. Then very frankly, I'm saying that I have covered that Naxalite attack area, Chandrapur, Gadchiroli. Then cover the election duty in the Gadchiroli area, basically. And very, very, very crucial time for me that time. And very frankly, this hardcore news, then crime, politics, ये सारे images we are not allowed to public place में हम उसको हमको नहीं allow वो मिलता है उसको दिखाने के लिए, because we have bond with the copyright act, we have bond with the जो हम लोग बॉन्ड साइन करते हैं, बिकॉज एज ए जर्नलिस्ट व्हेन यू जॉइन विद एनी पब्लिकेशन उनका एक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड को आपको साइन करना पड़ता है। मे बी यू आर ए ऑन बोर्ड फोटोग्राफर, यू आर ए उनके पे स्केल में आते हो, बट स्टिल यू हैव टू साइन ए बॉन्ड विद देम कि भाई आप कोई भी इमेजेस जो शूट करते हो इमेजेस को आप लेके नहीं जा सकते, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द इमेजेस विद यू। मे बी इन फ्यूचर में अगर आप वो इमेजेस वो लोग देखेंगे इस टाइप के इमेजेस, then they will sue you. Okay, so because of that, lot of photojournalists don't put their crime scenes photos or political photos. आपने देखा होगा काफी फोटोग्राफर इधर वो पेपर में उनके नाम के साथ आ सकता है, बट आप उनको पर्टिकुलरली मांगोगे या पर्टिकुलरली उनका जो फोटोज होते हैं वो फोटोज आप कभी देखने को आपको नहीं मिलता है। लाइक एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, might this topic is very new for you, might you knows that these are the basic rules। जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से पोब्लो बार्थोलोमियो है, लाइक एग्जांपल के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि रघुराय जी हैं, दे वर्क फॉर वो जो पब्लिकेशंस के लिए काम करते हैं, जैसे कि कौन सा पब्लिकेशन के लिए काम करते हैं, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, जब याद आएगा I'll let you know. Corbis, then another thing is जहाँ पे स्टीव मैककेरी भी काम करते हैं ना, क्या नाम है यार उस पब्लिकेशन का नाम है, so let me tell you, okay, मेरा ये जैसे रिमाइंड होगा। so उन लोगों का इमेजेस आप कभी देखे नहीं होंगे, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं जो सीन्स है आपने कभी नहीं देखा, जो उनका इमेजेस देखे होंगे वो उनका सेल्फ थॉट प्रोसेस के इमेजेस देखे हैं, बिकॉज उनको इसीलिए वो लोग क्या है सेल्फ थॉट फोटोग्राफर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि वो सेल्फ थॉट फोटोग्राफर वो पब्लिश करते हैं, बट जो वो लोग ऑन बोर्ड फोटोग्राफी करते हैं वो उनको पब्लिश करने के लिए अलाउ नहीं होता है। सो क्वाइट डिफिकल्ट सिचुएशन होते हैं ऐसे, हमने काम तो किया है बट हमको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है, इसके लिए फोटो जर्नलिस्ट का काम वैसा होता है कि उसको रिकॉग्नाइजेशन इतना इजीली नहीं मिलता है। रिकॉग्नाइजेशन जब मिलता है वो पेज पे प्रिंट होगा तब, प्रिंट में अगर पेज पे जो फोटोज है प्रिंट नहीं हुआ मतलब देयर इज नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दैट फोटो जर्नलिस्ट। दैट्स व्हाई एवरी फोटो जर्नलिस्ट ट्राई करते हैं कि मेरा इमेजेस सबसे डिफरेंट हो ताकि वो प्रिंट में जाए, एडिटर चूज करे और वो पेज में प्रिंट हो। अगर आपका प्रिंट पेज में प्रिंट हुआ तो यू विल बी लकी, ओके, वेरी फ्रैंकली यू विल बी लकी कि आपका पेज में प्रिंट आया है, इवन इट्स ए स्टैंड अलोन, इवन इट्स ए फोड और एनीथिंग व्हाटएवर इमेजेस आर। तो इसके लिए ये वेरी डिफरेंट वर्क होता है। तो स्पोर्ट्स एकदम लास्ट में होता है कि स्पोर्ट्स कवर करना है नहीं करना है, सो दैट इज वेरी 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 डिफरेंट। Okay, so let me go to some images, then I will go for the another part which is very different part, copyright rule। तो मैं पहले आपको कुछ images के साथ बात करता हूँ, copyright rule के बाद हम बाद में आएंगे, because images देखने के बाद आपको पता चलेगा copyright rules क्या होते हैं।
Hope I'm मतलब बोर नहीं कर रहा हूँ मैं आपको. You are enjoying the session. Say yes or no. So I hope you guys are not get bored. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. And I think Great. Everybody could continue, Saraj. It is interesting. Very, very interesting. Yeah. This is a totally new topics for us. Totally new topics. Very, very new topic. That's why we choose this topic, because we always regularly do that, like different sessions. But this session, basically, this topic is very different, and you have to know that is how the journalist is working. What are the actually concept behind it? This is a standalone picture, basically. Okay, so why this is a standalone picture? It's clear. Is it clear? Yeah. Now, because it's a high resolution picture. Can you anyone say why it's a standalone picture? What story this image saying? Anyone? Yeah, because it's a story of this person alone, that what he is doing and what he's up to. He's having a small shop and he's into some fair and all that. So Great, that's fine. Thank you so much. But from my point of view, my editor has said the winter is coming. So my editor is saying that the winter is coming, and I need a standalone picture where we have to show the winter. Okay, and in the Mumbai city, or might be in the western cities, you barely see the winter fogs, but there will be a mild winter, and we have to show them through the picture that the winter is coming, and the shop vendors are gear up with the winter cloths and all. So you have to show accordingly with some creativity, with some pictures, images. So this is how I have captured, and the picture has gone to the page. So this is basically the winter subject, because see, journalistic work is very, very different what you think, because sometimes you have to show the story. Sometimes the story is very, very natural. Sometimes it's very natural. Images are also always very natural, because we are bonding with some act that we don't ज्यादा हम इमेजेस में छेड़खानी नहीं कर सकते हैं. जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल शो करेंगे, बिकॉज पब्लिक देख रहा है इस पिक्चर को. This is a picture after immersion. गणपति के बाद आफ्टर इमर्शन के बाद क्या होता है, जो लो टाइड होता है, तो हाई टाइड के टाइम में तो इमर्शन हो जाता है, बट लो टाइड जब होता है तो सारा मूर्ति जो आइडल्स हैं वो वहीं पड़े रहते हैं. तो देयर विल बी वेरी वेरी डिफरेंट लोकेशंस होता है. ये दादर चौपाटी के पास है, तो वैसे ही पड़े रहते हैं. तो क्या होता है कि देयर विल बी ए टीम वर्किंग ऑन दैट. जितने भी आइडल्स होते हैं वो उनको इकट्ठा करके एक जगह पे जमा करते हैं, फिर उसको नाव में ले जाके डीप सी के अंदर इमर्शन करते हैं. सो दिस इज हाउ द इमेज इज. दिस इज अगेन इमर्शन. इट्स लाल बाग राजा. सो whatever image you are seeing is quite old images. Okay, so थोड़ा सा old images हैं, but इस explain करने के लिए it's fine. तो समंदर हमने देखा है, नदी के अंदर इमर्शन करना कैसा होता है, but समंदर में कैसे इमर्शन होता है. This is how they took it inside the deep sea and then they immerse it. Okay, and दादर चौक, ये गिरगांव चौपाटी है, full of publics. Okay, so we are the journalist. मतलब हम लोग क्या है, समंदर के अंदर बोट में थे. So let me tell you the story how we have covered this. हम लोग समंदर के अंदर थे. So इन टाइम पे क्या होता है कि there will be lot of chances for the क्या बोलते हैं उसको, क्राइम सीन का बहुत चांसेस होता है यहाँ पे. देन टेररिज्म का भी चांसेस बहुत होता है. तो बहुत ही हाईली स्ट्रिक्ट मुंबई पुलिस इसको कंट्रोल करता है. Nobody allows to go to inside the sea. कोई भी
मतलब बोट नहीं जाएगा, कोई फिशरमैन कुछ भी नहीं जाएंगे जब इमर्शन जब तक चलेगा. But we have some journalists who have taken permission from the Mumbai CP. That time was the Mumbai CP was Rakesh Maria and joint CP was Arup Patnaik. Okay, so Rakesh Maria and Arup Patnaik was the joint CP जब थे, और मुंबई अटैक के टाइम पे राकेश मारिया सीपी थे. तो उस टाइम पे का काम बात है ये. सो हम लोगों ने क्या उनसे परमिशन लेके बोट में अंदर गए थे, कुछ 6-7 जर्नलिस्ट मिलके. तो बोट हायर करके अंदर गए. So Coast Guard हमको फॉलो किया and there will be a helicopter top above the scene. हम लोग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है and they are asking us that why you have insert your boat inside the sea. मतलब अंदर क्यों जा रहे हो? तो वो बोले we have take permission from the ये क्या बोलते हैं इसको, सीपी से परमिशन है हमको. तो जो कोस्ट गार्ड है वो हमारे बोट में आए, सबका चेक किया, देन सीपी परमिशन चेक किया, देन दे अलाउ अस. लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ सिचुएशन. हम लोग इमेज को कैप्चर करने के लिए उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, हम उसको गुजर जाते हैं एंड कवर करते हैं. दिस इज द इमेज. वो उसको जाके डीप सी में गिराते हैं. समटाइम नो यू हैव टू कवर सम कंसर्ट म्यूजिक्स. ओके, बहुत सारे ऐसे कंसर्ट्स होते हैं जो आपको ये, दीज आर ऑल पिक्चर्स. मैंने कोई लाइनअप नहीं किया है, रैंडम है, कुछ भी इमेजेस आएंगे, सो डोंट माइंड. अगर कोई इमेजेस पे आपको कुछ क्वेरी है, कुछ जानना है, कोई क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी इजीली. ओके, सो रैंडम पिक्चर्स आएंगे के साथ. तो मैंने लाइनअप नहीं किया कि इसके बाद ये आएगा. सो समटाइम वी हैव टू कवर द लैक्मी फैशन वीक. ओके, सो ग्लैडरेक्स फैशन वीक, देयर अ लॉट ऑफ फैशन वीक्स आर देयर. सो हमको वो भी कवर करना पड़ता है बिकॉज एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, द लैक्मी फैशन वीक. ओके, देन द बैकस्टेज स्टोरी. सो फैशन वीक का बैकस्टेज स्टोरी करते हैं हम लोग, हाउ भी कवर करते हैं. सो हाउ दे आर गेटिंग रेडी, और उसके बाद भी कितना क्रिएटिव आप ले सकते हो. दिस इज अनदर इमेज ऑफ द स्ट्रीट. सो व्हाई द इमेज इज शोइंग क्यूरियोसिटी, बिकॉज इजीली आप पहचान सकते हो उनके आइटरी देख के, उनके कपड़े देख के कि दे आर फ्रॉम राजस्थान. ओके, पंजाब होता तो उनका पगड़ी अलग होता, राजस्थान होता तो पगड़ी अलग होता, बट दिस इज अ राजस्थानी पगड़ी. ओके, सो somehow you can get feel of that. The images आपको बता रहा है कि ऐसा है. This is a Mumbai Marathon picture. So क्या हुआ यहाँ पे, स्टोरी क्या है कि सब कोई मुंबई मैराथन शूट कर रहे हैं और एवरीवन इज कैप्चरिंग द पिक्चर. जो पर्सन दौड़ रहा है, झाल में भीगा हुआ है, पानी पी रहा हुआ है, वो थोड़ा सा एक्शन मार रहा है, शॉट्स लेते हैं. बट मैंने क्या किया कि जब देखा कि बैकलाइट आ रहा है, द शेडोज आर क्रिएटिंग वेरी गुड, so I just waited. And जब ऐसा कुछ मुझे स्टेप मिला, थोड़ा सेपरेशन मिला, I click the picture and this picture gone to the page. So ये मैराथन का एक symbolic picture है. So I didn't show that the direct picture, but anyway I will have lot of other pictures. मतलब जो normal picture होता है, picture इस presentation mode में नहीं है. How to go to presentation mode? Slides, right? Yeah. Yes. Now it's okay. देखिए, so I have yeah. So this picture is the presentation mode. This will be go a little bit faster. What you can do is that like bottom right hand corner there's an arrow, diagonal arrow. Oh, great! Yes. Okay, so this is also the marathon picture, but this is a symbolic picture again. That this is the winning picture, and this picture has awarded me. मुझे इस picture से award भी मिला था. I will show you that picture award. So it's a very simple picture, but it's a ironic picture of Mumbai and the Nigerians जो inviters जो होते हैं ना मुंबई मैराथन के लिए दौड़ते हैं, वो they are the first step in runners. पहले ही रन करते हैं बिकॉज ये लोग को 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है. ओके, और विद इन 2 आवर 3 आवर के अंदर वो लोग 40 किलोमीटर दौड़ के कवर करते हैं. सो इसके लिए पिक्चर वाज डिफरेंट फॉर मी विद स्टोरी टेलिंग. या ईस्टर केक्स. ओके, सो जैसे मैं बोला था फूड कवर करना होता है, 5 स्टार होटल्स का स्टोरी कवर करना होता है, वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या केक बनाता है. सो
इस काइंड ऑफ फोटो स्टोरी वो फूड के ऊपर डिपेंड करता है. This picture is another things and completely as a journalist हम लोग क्या करते हैं कि अपने कैमरे, 2 कैमरे, 3 लेंसेज, एक फ्लैश, उसके साथ और कुछ हमारे पास होता नहीं है. राइट, तो उसके साथ हमको कवर करना है, जो भी शूट करना है उसी के साथ हमको क्रिएटिविटी बनाना है, बिकॉज उससे ज्यादा हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं. बट नाउ डेज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं डिफरेंटली, एज वेल एज अभी जो फोटो जर्नलिस्ट काम करते हैं उनको स्पेशल लाइट का परमिशन मिल जाता है, बहुत सारी चीजें. बट हमारे टाइम पे इतना नहीं था. ओके, और आपको अगर पर्सनली करना है तो कर सकते हो, बट ऑफिशियली कोई ऑफिस लाइट खरीद के नहीं रखता था, कोई ऑफिस के पास वो परमिशन नहीं था, लाइट कैसे कैरी करोगे, ये करोगे, वो सारा जो ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टिंग कुछ नहीं था. बट आजकल सब कुछ है. बट स्टिल यू हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ मार्केट. This is another street photograph shot से you can find the legs of the persons. आपको leg find out करना है, how they are tied up. Okay, in the street they are sleeping, and suddenly I just saw this picture and I click it and I convert it into the black and white because it's look much natural and much beautiful in the black and white. But I clicked it in color, और मैंने इसको black and white में convert किया है. Okay, so might this picture is totally different. This is on the street of the Banaras. So there is a story again. Okay, you can find out the story. I don't have to say anything because the story is itself, the image is itself saying a story. So the goat is also a child. Okay, so उसके हिसाब से they are taking care of things. और street में they don't feel shy कि अगर हम उसको लेके जाएंगे तो हमको भी कोई फील करेगा, ऐसा करेगा. So there is kind of narration. तुम कुछ किसी भी टाइप के उसको narration कर सकते हो. This is a simple Gerald portrait. This is another kind of portrait with environment. It's in the Rajasthan basically. So वहाँ पे विंटर कैसे होता है, बहुत ही फॉगी विंटर होता है, ठंड इतना रहता है. राजस्थान जितना गर्मी है उतना ठंड भी है. तो somehow अब मैं इसको बोल सकता हूँ, एक ट्रैवल भी बोल सकता हूँ, ट्रैवल फोटोग्राफी का एक पार्ट भी बोल सकता हूँ, एक पोर्ट्रेट भी, एक इन्वायरमेंटल पोर्ट्रेट भी बोल सकता हूँ. ओके, और एक स्ट्रीट भी बोल सकता हूँ. एनीथिंग आई कैन से. सो दिस इज द इशू. जब बहुत सारे मील्स बंद होते हैं, तो एक मुंबई में एक मील बंद हुआ था. सो दे कटन ऑफ द फ्लाईओवर के नीचे को उन्होंने बंद कर दिया था. देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मील वर्कर्स गॉन टू स्ट्राइक. तो पुलिस वाले उसको ट्राई करे समझाने के लिए, बट दे आर नॉट लिसनिंग टू देम. एंड ये कैसे शॉट लिया गया है, 2 फ्लाईओवर के बीच में छुप के मैंने ये शॉट लिया हुआ है, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे वो लोग कटन अप किए हुए हैं और नीचे क्या चल रहा है यू डोंट इवन, आप जा नहीं सकते. ओके, तो फ्लाईओवर के नीचे जब कॉर्डन अप किया हुआ है तो आप फ्लाईओवर के नीचे जा नहीं सकते, आपको अलाउ नहीं करेंगे इतना दूर जाने के लिए. तो आपको शॉट लेना है तो कहाँ से ले सकते हो? नियर बाय देयर इज नो सच बिल्डिंग जहाँ से आप टॉप फोटो ले सकते हो. अगर बिल्डिंग में लोग भी तो फ्लाईओवर का ऊपर जो पार्ट है वो नीचे के पार्ट को कवर अप कर देता है. तो इसके लिए क्या है, दोनों फ्लाईओवर का जो जॉइंट होता है, बीच में गैप होता है, एक होल होता है, उस होल से इस फोटोज को लिया गया है ब्लेंडली. ओके, फोकस पॉइंट को इन्फिनिटी में रख के ऑटो फोकस करेंगे तो ये जो ऊपर जो ग्रिल दिख रहा है, इट्स नॉट ए क्रिएटिविटी, इट्स एक्चुअली ग्रिल, और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे. तो इस ग्रिल पे वो फोकस जाता था. सो हम क्या करते हैं, इसको इन्फिनिटी में मैनुअल फोकस करके कैमरा को नीचे लगा के होल के अंदर आंख बंद करके फोटो क्लिक करो, जो भी फोटो आया इट्स ओके. ठीक है, वैसे फोटो क्लिक करके ये दिस पिक्चर हैज क्रिएटेड. This is another image which is actually moving van story. तो जो स्लम डग होते हैं, ओके, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो रोड साइड मतलब स्लीपर होते हैं, उनके लिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक हेल्थ ऑर्गेनाइज करता है, एक वैन है जिसमें एक वैन में सब कुछ होता है. एक डॉक्टर बैठा रहता है, एक नर्स है, एक क्लिनिक है, कम्प्लीटली मेडिसिन है, एवरीथिंग है.
एंड द रजिस्टर है, तो वो लोग पे रोड साइड है, जितने भी रोड साइड के वर्कर्स हैं वो लोग आके वहाँ पे डॉक्टर्स को विजिट करके अपना प्रॉब्लम्स बता के मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये एक स्टोरी था। तो इस स्टोरी को कवर करना है तो आप खाली डॉक्टर को, पेशेंट को शूट करेंगे तो नहीं होगा। रोड साइड भी मुझे दिखाना है कि रोड साइड पे है, नीचे फ्लाईओवर दिख रहा है, पीछे गाड़ी मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, ये ट्रैवलर है, मतलब स्लमडॉग है, सपोज मान लो कि आपका एक बेगर है, देन वो नॉर्थ से खाता है, एवरीथिंग एवरीथिंग यू हैव टू बी शूट ऑन ए सिंगल पिक्चर। दिस इज हाउ द स्टोरी हैज टू बी टेल्ड। सिंगल पिक्चर से एक कपल ऑफ स्टोरी। द सिमिलर पिक्चर का एक अलग पिक्चर है। This is a picture again, you know, it's a very difficult picture. हम इस पिक्चर के लिए इसे ऑफकोर्स उद्धव ठाकरे, ओके, एंड क्या पिक्चर था कि उद्धव ठाकरे जब फर्स्ट टाइम बाईपास सर्जरी करके लीलावती हॉस्पिटल से निकले थे, सो वी डोंट नो दैट कि वी हैव टू कवर द स्टोरी एंड आई डेप्यूटेड फॉर दैट। एंड लीलावती हॉस्पिटल के सामने रास्ता है, रास्ता के साइड में ऊपर एक बहुत सारे पेड्स हैं। तो हम लोग ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं, हर कोई ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं। और कब हम लोग बैठे हुए हैं, सुबह शाम को 4 बजे से लेके रात की 9 बजे तक। आप ट्री को छोड़ के नहीं जा सकते। ट्री को अगर छोड़ के जाओगे या थोड़ा सा आप अगर कहीं पे अगर आप पासिंग भी जा रहे हो, पी कर ले जा रहे हो, कभी भी अगर उद्धव ठाकरे बाहर निकल के चले जाएंगे एंड यू डोंट गेट द पिक्चर, देन ऑफ कोर्स योर एडिटर विल सी यू आफ्टरवर्ड्स। ओके, सो ऐसा सिचुएशन होता है कि आप हिल नहीं सकते, आप पान खाने नहीं जा सकते, आप चाय पीने नहीं जा सकते, आप इवन सुसु करने नहीं जा सकते। आप जहाँ बैठे हो 8-8 घंटा 9-9 घंटा आपको वहीं बैठना है, हिलना नहीं है, विथ केयरिंग ऑल द इक्विपमेंट्स एंड ऑल। दिस इज वेरी टफ सिचुएशन जब पॉलिटिकल इश्यूज कवर किया जाता है। तो फाइनली एट 9 o'clock he come out from the hospital and he sit in his car। और वो कार से जब निकल रहे थे, गेट के बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने जस्ट हाय हेलो किया। So he just waved his hand। So उस टाइम पे ये फोटो शूट किया गया। And you don't believe that after 9 o'clock और क्या सिचुएशन रहेगा, क्या लाइट रहेगा, वो एकदम पुअर लाइट सिचुएशन में भी you have to cover the picture। तो ऐसे सिचुएशन में पिक्चर को कवर किया गया है। And that will be again like you know, ये सारे वैसे स्टोरीज होते हैं। Of course rain is another favorite subject। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है रेन। ओके, रेन को मैं बहुत डिफरेंट टाइप से शूट करता हूँ, कभी हाई शटर स्पीड में, कभी लो शटर स्पीड में। सो आई एंजॉयड लॉट ऑफ इमेजेस विद रेन। एंड दिस इज अ पिक्चर जो हम लोग बेसिकली जन्माष्टमी में शूट करते हैं। इट्स वेरी कॉमन पिक्चर, बट माय पर्सपेक्टिव इज वेरी डिफरेंट। दैट आई वेंट टू ए हाई राइज बिल्डिंग एंड लॉट ऑफ पीपल शूट दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स। ओके, लॉट ऑफ पीपल शूट दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स। दिस इज दिखाई नहीं दे रहा है मैंने जो पिक्चर चेंज किया? यस, दिस इज द पिक्चर जो टाइट पिक्चर मैंने दिखाया आपको। बहुत लोग ये टाइट पिक्चर शूट करते हैं। ओके, सो बहुत लोग ये टाइट पिक्चर शूट करते हैं, बट माय पर्सपेक्टिव इज वेरी डिफरेंट। मैंने क्या किया है कि उसके साथ साथ उस सेटअप कैसे लगता है, ठीक है। दूसरा चीज है जो पीछे जो चॉल्स है, मतलब जो स्लम है, तो स्लम को भी मुझे दिखाना था। एंड दिस इज द complete picture of Mumbai कि भाई Mumbai is not for only high rise buildings, it's for the like you know slums also। there is a 1000 of slums वहाँ पे है, जहाँ पे मुंबई स्लम से भी आपको देखोगे तो कॉन्ट्रास्ट पार्ट दिखेगा, स्लम्स भी दिखेगा, वहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स भी दिखेगा। दिस इज आर द वर्सैलिटी ऑफ द मुंबई। तो मैंने इसको डिफरेंट टाइप से कवर किया ताकि मुझे जो सेलिब्रेशन है वो भी दिखाई दे, how the people are celebrating, even the high-rise people or even in the slum people are also together to celebrate the events, as well as the picture of the complete scenario। ये उसका टाइट शॉट्स है। वैक्सीनेशन डे। ओके, दिस इज माय एक्चुअली शॉट्स, एक पोर्ट्रेट के हिसाब से अब इसको मैंने शूट किया था। सो इन द वैक्सीनेशन सेंटर में ही शूट किया था। सो कुछ लोग लिटिल बिट ग्राफिकल फॉर मी एज वेल एज थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, जैसे डॉग थोड़ा सा दिख रहा है, द कलर, द लाइंस, द पैटर्न्स, एवरीथिंग इज क्वाइट सिमिलर, so I like it।
This picture I have took on World Photography Day. Why only the human are eligible to shoot the pictures? Why not the dogs? So मैंने ये पिक्चर क्लिक किया था एक जगह पे जाके, मैंने अरेंज कराया था, मैंने अरेंज करके मैंने ये करके वहाँ पे शूट किया था, और ये पिक्चर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में मेरा पेज में प्रिंट हुआ था. So वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में पोर्ट्रेट ऑफ द डॉग्स, okay, with studio setups. Sometimes we have to shoot accident, local accident, basic things. Profiles, जैसे मैंने बोला था, प्रोफाइल शूट करना है. Yeah, Mary Kom was winner of that time, the gold medalist win the gold medal. Then उसका event था, then we cover up that. Okay, so Mary Kom. This is a picture, another standalone picture, which is showing that the monsoon is coming. Monsoon is hitting the city, basically. Okay, so monsoon city को hit कर रहा है. This is actually picture that the city is showing. The ironic आप ये देख सकते हो, जो अपना सीलिंग देख सकते हैं, the monsoons, waves, okay, the clouds, just presentation purpose. This is all, another picture in the similar place only, okay. But now this time what I have done, I have shot with the railing. तो रेलिंग के थ्रू मैंने शूट किया था इस पिक्चर को, कि सिटी के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, मतलब मॉनसून बादल मंडरा रहे हैं, विथ कंपोजिंग टू द सिटी लिंक्स एंड ऑल. देन यहाँ पे जो दो पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे वो लिंक के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था, तो 2-3 लड़के बैठे हुए थे बेसिकली. आई जस्ट सॉ दैट एक बंदा जो है वो थोड़ा अजीब जूता पहना हुआ है, अजीब स्टाइलिश जूता पहना है. मैंने उसको बोला कि तू यहाँ बैठ जा, ओके, तो यहाँ बैठ जा, मैं तेरे को कंपोज नहीं करूंगा. वो डर रहा था क्या करेंगे क्या नहीं, तो मैं बोला मैं तुझे कंपोज नहीं करूंगा, मैं पिक्चर अलग बना रहा हूँ, बट मैं तेरा जूते का जो स्टाइल है, जो ह्यूमन है, जो एक फील है, वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ. तो आई जस्ट पुट इट देयर, मैंने उसको प्रेजेंट किया वहाँ पे, और आई क्लिक एंड आई सॉ द पिक्चर टू द गाय, बिकॉज वो डर रहा था. देन ही इज सेइंग या फाइन. फिर मैंने इसको जाके प्रेजेंट किया. एंड दिस इज another things, like if थोड़ा सा बारिश होता है, then of course तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आर वेरी वीक हो जाता है, तो ये भी एक स्टोरी का पार्ट है. दिस इज हाई रेन लॉसेस टू मुंबई, ट्रैफिक जाम, कुछ भी स्टोरीज होते हैं ना, ये जैसे जनरल न्यूज बोलते हैं ना, दिस आर ऑल जनरल न्यूज. ओके, दिस आर द ट्रैफिक जाम, बहुत ही हिडन जाम होता है. मैं क्या है, एक फ्लाईओवर क्रॉस ओवर ब्रिज, उसके ऊपर खड़ा होकर पिक्चर शूट कर रहा हूँ. मेरा कैमरा भीग रहा है, मैं क्वीन चिटर के ऊपर बैठा हुआ हूँ. देन बारिश, मतलब रेन इज, देयर इज अ लॉट ऑफ हेवी रेन्स, और मुंबई इज वेरी फेमस फॉर हेवी रेन्स, राइट. ओके, और जब मुंबई बह गया था एक बार, जो फर्स्ट टाइम, तभी भी मैं था, मैंने कवर किया था कुछ पिक्चर्स, आपको वहां से भी दिखाऊंगा. दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ द रेन ओनली, okay, with the backlight. And this picture is very simple picture, just a backlight. There is 2 persons waiting for the bus, but there is no bus and all. And this picture led me to win the best photographer of the year of 2012 in London. London magazines, जो प्रोफेशनल magazines का जो एग्जीबिशन होता है, जो फोटो कॉन्टेस्ट होता है, वहाँ पे मैंने इस पिक्चर को भेजा था. एंड दे selected it as a best photographer of the best photo creator of the month, year. Okay, so इसका भी photos है. This is again another political rally issues. Hope you guys see these two gentlemen. आप लोग जानते होंगे दो gentlemen को. Okay, एक तो ये मर्जिंग का टाइम है, जब ये रेंज रोवर को रेंज रोवर एंड जगुआर का मर्जिंग हुआ था. दोनों भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. ओके, तो ये कार शो था, तो कार शो में दोनों का जब मर्जिंग हो रहा था, जब अनाउंसमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे तो मुझे चांस नहीं मिला था शूट करने के लिए. बट बाद में जब कार शो में दोनों आए थे, तब मुझे चांस मिला दोनों को शूट करने के लिए. तो राइट हैंड साइड वाले जो हैं वो जगुआर के एमडी थे, लेफ्ट साइड वाले जो है वो रेंज रोवर के ये थे एमडी. दिस इज जगुआर. Zumba dance, kind of subject we have to cover. Winter and everything. So here, purposely I shoot by 2 o'clock. रात को 2 बजे मैं शूट कर रहा हूँ.
बॉस ने भेज दिया कि वह विंटर का फोटो शूट करो अगेन नेक्स्ट विंटर, मतलब देयर इज लॉट ऑफ विंटर, सो सपोज नेक्स्ट विंटर में अभी क्या बनाऊं मैं पिक्चर यार, सो रात भर मैं घूम रहा हूँ 2 बजे 1 बजे, so suddenly I found that there will be 2 security guard, मतलब आग ताप रहे हैं, okay, but ये कहीं पे भी हो सकता है, it's in Delhi also, it's in Kolkata also, it's in Bhubaneswar also, but I have to show the symbolic here again that it's in Mumbai, and I have waited around half an hour there, then there will be a BST bus, एक बस पास हुआ, BST बस पास हुआ, then I captured that bus कि भाई उसको थोड़ा सा मैं जानबूझ के ब्लरी शूट किया, थोड़ा स्लो शटर स्पीड में, तो मिड शटर शूट किया ताकि वो भी, ये लोग भी ना हिले और वो थोड़ा सा ब्लरिश लगे, then it's prominent that it's in Mumbai. So this is how you have to create the images sometime in an event. Of course he's very famous, of course you know guys, everyone. This is again another picture of winter. Okay, ये not only गांव में होता है, ये शहर में भी होता है, so okay, very अलग पर्सपेक्टिव है विंटर्स में आग सेकते हुए। ये इवेंट्स हैं, so सेलिब्रिटी इवेंट्स काफी कवर करता था। ये थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है पिक्चर का, द फिशर बोट्स आर इनटू द सी, फ्लेमिंगोस, ओके, सो मोस्ट ऑफ टाइम जो क्रीक होता है, क्रीक में फ्लेमिंगोस आता है, तो आपको शूट करना होता है, यू हैव टू फाइंड ए हाई रेज बिल्डिंग और समथिंग एंड यू हैव टू कवर, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई बताएगा नहीं कहाँ है क्या है, तो आपको ढूंढ के आपको शूट करना है, बिकॉज देयर इज अदर फोटोग्राफर्स होते हैं जो वो अपने पब्लिकेशन के लिए शूट करते हैं, बट वो लोग बताते नहीं है, बिकॉज अगर उसका पब्लिकेशन में शूट हो रहा है, तुम्हारे पास भी वही है, तो फिर कोई ये नहीं है, सिमिलर हो जाएगा, सो यू हैव टू फाइंड ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड थिंक। स्पाइडर्स क्या बोलते हैं आप लोग इसको, ओके, स्काई स्कीपर के जो स्पाइडर्स होते हैं जो ग्लास क्लीन करते हैं, ओके, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने आर्टिस्टिकली इसको कवर किया है। सो अगर आप इसको स्टोरी के हिसाब से लेंगे, या आप इसको एक पेंटिंग के हिसाब से लेंगे, या आप इसको एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से लेंगे, इसका पैर है, उसका चेहरा है, सो दिस इज हाउ इट्स ओनली प्रेजेंटेबल। Another favorite subject है, मैंने बोला था रेन में जब वाटर लॉगिन हो जाता है बॉम्बे, सो हाउ द बीएमसी वर्कर्स आर वर्किंग टू रिमूव द वाटर। सो दिस इज अगेन, मैंने फ्लाईओवर के नीचे खड़ा होके शूट कर रहा हूँ, एंड आई जस्ट फाउंड दैट देयर इज ए, लेकिन ऑफ कोर्स जो चाइल्ड, जो बच्चा जो है वो आके पानी खेल रहा है, इट्स लुक वेरी क्रिएटिव फॉर मी, तो मैंने जस्ट कैप्चर कर लिया है। इट्स नॉट लाइक ऑलवेज यू हैव टू कैप्चर फॉर द पब्लिकेशन, समटाइम यू हैव टू कैप्चर फॉर योरसेल्फ आल्सो, ओके, यू हैव द स्टोरी स्टार्टेड, उसको पता है पानी में इतना पानी है, ट्रैक लाइन नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ही इज गिविंग द ग्रीन सिग्नल बिकॉज मुंबई इज यूज्ड टू इट, मुंबई इज यूज्ड टू इट, still he is giving the green signal. Is there any comments? So let me check. Do you guys have any queries still? Okay. As a photojournalist, आपको तो you have to be on the go always. So I'm sure आप JPEG में उठाते होंगे, because RAW के लिए edit करने के लिए तो time ही नहीं होगा. Very frankly, we always shoot like JPEG, but it depends upon the stories. Okay, that how we categorize when we started for the event. जब हम कोई भी इवेंट के लिए जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो हमको पहले कुछ इवेंट्स पता होता है, कुछ इवेंट्स हमारे लिए ब्लाइंड है, वो सडनली रास्ते पे ही पता चल जाता है कि एक चीज सिनेरियो चेंज हुआ है, हम कहीं से कहीं पे भी डाइवर्ट हो सकते हैं, हम अगर एक रूट लेके जा रहे हैं तो हम कभी ना कभी कहीं पे भी रूट चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्ट्रीट फोटोग्राफर बनना है, बहुत अच्छा स्ट्रीट फोटोग्राफर बनना है, तो लेट मी गिव यू वन टिप जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। ओके, सो द बेस्ट टिप इज ऑलवेज चेंज योर रूट्स। आप जिस रूट पे आप रेगुलर जाते हो, उस रूट को आपको
रेगुलरली चेंज करना है। आप उस रूट में डेली घर नहीं जाना, उस रूट से डेली आप ऑफिस नहीं जाना, ऑलवेज रूट को चेंज करना है। तब आप स्ट्रीट में इवेंट होते हुए देख पाओगे, स्ट्रीट में एक्टिविटी होते हुए देख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आप रोज एक रास्ते से जाते हो अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से स्टूडियो, स्टूडियो से घर, तो आपको वही चीजें दिखेगा, आपको कोई नथिंग न्यू नहीं दिखेगा। आप उसी को कैप्चर करने के लिए आप बोलोगे यार बोरिंग चीजें रोज देखता हूँ, क्या शूट करूंगा, और उसी जगह को दूसरा बंदा आके शूट करके अच्छे से क्रिएट बना सकता है। इसीलिए वो सजेशन होता है कि ऑलवेज रूट चेंज करो। जब रूट चेंज करोगे तो आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएगा डिफरेंट चीजें देखने में, तो आप डिफरेंट चीजें को इंटरेस्ट लोगे, उसको कैप्चर करोगे, तो आपका स्ट्रीट फोटोग्राफी और स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट आप एक दिन में इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, but of course over a period you will be getting stronger than stronger. And this is the tip, जब कि आपको रेगुलरली आपका रूट चेंज करना है। रूट नहीं चेंज करोगे तो आपको दिखेगा नहीं, और जब तक नहीं दिखेगा आप उसको शूट नहीं करोगे। ओके, तो दिस वे, इसके लिए क्या होता है कि हम लोग जब भी घर से निकलते थे, हम हमेशा अलग अलग रूट में निकलते थे, और अलग अलग रूट में हम लोग इंफॉर्मेशन दे देते थे कि हमारे डेस्क को कि हम इस रूट पे हैं। तो उस रूट में अगर कोई भी एक्टिविटीज चल रहा है तो सडनली हमको डाइवर्ट किया जा सकता था कि हम इस रूट पे, अगर कुछ नहीं है तो आप स्टैंड अलोन शूट कर रहे हो, कुछ है तो आप कवर अप कर रहे हो। ओके, और आप ऑलवेज रेडी टू गो है, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। यस, ये होता है कि बहुत सारे फोटो जर्नलिस्ट होते हैं, तो क्या होता है कि चलो ठीक है मैं नहीं जा पाएगा तो दूसरा कोई चला जाएगा, बट एज ए फोटो जर्नलिस्ट आपका एक क्रेज होता है कि ये इमेजेस मेरे पास होना ही चाहिए। मुंबई ताज अटैक, किसको नहीं चाहिए वो फोटोज? ओके, 50 और भी डेप्यूटेड हैं, बट एज ए फोटो जर्नलिस्ट आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं करूंगा, व्हाई नॉट आई विल गो टू शूट दैट पिक्चर्स, इवन देयर विल बी ए लॉट ऑफ अदर फोटोग्राफर्स आर देयर। ओके, दे कवर कर लेंगे, मैं क्यों जान वो खतरे में डालूं और जाऊं। बट एज ए फोटो जर्नलिस्ट जब आप इस सिचुएशन में आओगे, आप अलग सोचोगे, आप अपने करियर को डिफरेंट तरीके से ले जाओगे, और आपको अलग टाइप का ही शूट करना है, आपको अलग टाइप का है, क्योंकि ये इमेजेस मेरे पास होना जरूरी है। मैं यहाँ चाहता तो बोलता दूसरे किसी को भेज दो यार, ये बारिश का पानी कौन शूट करेगा, ट्रेन में ऐसा पानी उठ रहा है, जा रहा है, ये इतना पानी में कौन जाएगा, मेरी सोफिस्टिकेटेड ओ, बट मैं आपको ये इमेजेस नहीं दिखा सकता अगर मैं ऐसा सोचता तो इसके लिए क्या होता है कि आपको करना है, ऑलराइट। सो और आपको रेडी टू गो है, इवन आपका मन नहीं है बट आपको इमेज के लिए जाना पड़ता है, इवन आप सीखो फिर भी आपको इमेज के लिए जाना पड़ता है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द इमेजेस एंड वी आर क्रिएटिंग द इमेजेस फॉर द फ्यूचर। ये इमेजेस आप सिंडिकेशन में देखोगे तो आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। तो आप हमारे लिए नहीं शूट कर रहे हैं, हम आपके लिए शूट नहीं कर रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए शूट कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि मुंबई पहले कैसा दिखता था, आज कैसा दिख रहा है, पहले कैसा ट्रेंड चलता था, आज कैसा ट्रेंड चल रहा है। दिस इज व्हाट द डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स। सो दिस इज अनदर पिक्चर, ये होली है, वाटर होली। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप का होली है, विलेज में खेला ये होली होता है। तो ये क्या होता है कि कोड़े से पीटते हैं होली में। ओके, और तो ये कलर में नहीं खेलते, ऐसे ही खेलते हैं, होली में कोड़े में पीटते हैं। तो कोड़े में पीट के ये उसको ये कहते हैं, ये एक गांव खेड़ बोलते हैं ना, गांव खेड़ का एक इन्वायरमेंट है, वहां पे जाके हमने शूट किया हुआ है। बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव है, बट जस्ट आपको मैं एक प्रोस्पेक्टिव दिखा रहा हूँ। ओके, सो फॉर ए प्रोफाइल शूट मैंने शूट किया हुआ था। जैसे बहुत सारे मैंने शूट किया हुआ है, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस का, पर मतलब पर्सनली शूट किया हुआ है, बट नो लाइट नथिंग, ओनली फ्लैश लाइट 45 डिग्री एंगल बाउंस। ओके, जस्ट फायर करना है, बिकॉज दे डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, तुमको इतना टाइम वो नहीं देंगे। जस्ट कैमरा रेडी करके, फ्लैश रेडी करके, 45 डिग्री एंगल में आपको कैमरे को रख के आपका बाउंस व्हाइट प्लेट बाउंस करके बस धड़ाधड़ मारते जाना है बस, और आगे पीछे देखना ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी हैव नो टाइम फॉर दैट। People are saying I am shooting on manual, I am shooting on aperture, I am shooting on shutter priority. For me, doesn't bother. Okay, shutter priority में है तो shutter priority में शूट करो, aperture में है तो aperture में शूट करो। Okay, that's all. Manual हम बहुत रेयरली जाते हैं, बहुत ही रेयरली जाते हैं manual पे। बाल ठाकरे जब एक्सपायर हो गए थे, मैंने कवर कर रहा था, सो इट्स फॉर द
मराठी पीपल दैट द संघर्ष, मराठी पीपल के लिए संघर्ष बढ़ गया है, पर मुझे कोटेशन और वैसे ही एक प्रेजेंटेशन है, जस्ट पोर्ट्रेट, फ्यू पोर्ट्रेट्स आर इंक्लूडेड। ये स्ट्रीट का एक पार्ट है, एक इवेंट का पार्ट है। ये मैंने कोलकाता में शूट किया, ये इस बीच में इसके अंदर आ गया है फोटो। तो ये मैंने कोलकाता में शूट किया था। जैसे आप कैनिंग जाओगे ना तो आपको यहाँ पे बुल रेस होता है कैनिंग में। तो ये अभी बारिश के टाइम पे, बारिश की मिड बारिश में, मतलब आपको अगस्त या सितंबर में आपको मिलेगा। आप वहाँ पे सर्च करना बुल रेस ऑफ कैनिंग, ओके। तो वहाँ पे 2-3 जगह पे होता है, तो आपको कवर करना है तो आप जाके कवर कर सकते हैं। वहाँ पे बुल रेस बहुत ही अच्छे होते हैं। प्लेइंग विद द लाइट, शेडो, ओके। समर, तो ये समर का भी पार्ट है। थ्रस्टी, बहुत सारे टॉपिक है इस टॉपिक। जस्ट स्ट्रीट, बैठो चाय पी के जाना। सो वी ऑलवेज लुक लाइक सम सिचुएशन, सम सिंबॉलिक पिक्चर्स, ओके। इट्स नॉट लाइक अगर वो उसके साथ बुलेट नहीं होता तो वो मजा नहीं आता, या उसके साथ कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता तो भी मजा नहीं आता। सो यू हैव टू कंपोज अकॉर्डिंगली। कुछ पिक्चर ऐसे मिक्स हो गए हैं। दिस इज द पिक्चर अगेन, कांचनजंगा। तो ये लास्ट लाइट का फोटोज है, लास्ट लाइट ऑफ 2020, ठीक है। नॉट 2020, सॉरी 2019, ओके। 2019 में तो ऐसे लॉकडाउन था, कहीं गए नहीं थे। सो 2019 का शॉट है ये। तो लास्ट नाइट ऑफ 2019 विद कांचनजंगा। सो ये थोड़ा सा सिंबलिक पिक्चर है कि 19 का 31 दिसंबर में हम इवनिंग में वहाँ थे, ताकि जो लास्ट लाइट है उसको शूट कर सकें। सो दिस पिक्चर जो मैंने बोला था आपको, द फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2012, एंड दिस इज द पिक्चर। इंडिया से मेरा ही नाम था, सरोज कुमार दुरा। इट्स लुक वेरी सिंपल बट इट्स वेरी प्रिटी, ओके, एंड दे लाइक इट। जैसे बहुत सारा फोटोज थे, यूके, रशिया, यूके, सर बहुत सारे पिक्चर्स थे, बट मैंने इसको नॉर्मली न्यूज कैटेगरी में भेजा था। एंड सो ये 4 इमेजेस विन हुए थे उसमें से। Sorry, it's my early day when I used to cover just ये अपना जो बोलते हैं ना, अब जो आईफास होता है, ओके, स्टार स्क्रीन होता था, ओके, इवन अवार्ड शोज होते थे ना एक्टर्स एक्ट्रेस का, वो लोग का इवेंट कवर करते थे। स्क्रीन अवार्ड था, मैं स्क्रीन टीम से था। दिस इज अगेन न्यूज कैटेगरी में भी आता है, पर्सनल के लिए भी यूज कर सकते हो इसको। सो थंडरबोल्ट आपको शूट करना है, लाइटनिंग शूट करना है, तो वेरी टफ सब्जेक्ट ऑलवेज, बट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट होता है ये, बहुत सुंदर होता है। कोवई में एक डैम है सिटी में, बॉम्बे में। सो वो ओवरफ्लो होता है वेरी रेयरली सिटी में। सिटी के बीचों बीच एक लेक है, सो उसका एक पिक्चर है। लेक जब ओवरफ्लो होने लगा तभी एक पिक्चर बनाना था विथ सिटी व्यू, सिटी स्केप के साथ। जो डैम ओवरफ्लो हो रहा है एंड पब्लिक, लोकल पब्लिक है, वो एंजॉय कर रहा है इवेंट। ये देखिए, मैं जो बोला था आपको, बेस्ट पब्लिश मूवमेंट ऑफ SCCM, मतलब ये स्टैंडर्ड चार्टर मुंबई मैराथन का 12 का ये पिक्चर जो मैंने आपको बोला था, दिस इज द पिक्चर। सो दिस इज आल्सो पब्लिश्ड, मुंबई मैराथन के बड़े बड़े होर्डिंग्स में प्रिंट हुए थे। ये इमर्शन के टाइम का पिक्चर है। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट, द रियल मुंबई, where the slums are also there, the high rise also there, the higher quality people, helipads, और उसको डिवाइड कर रहे हैं आपका मुंबई लोकल ट्रेन। अगर मुंबई लोकल ट्रेन नहीं होता तो पिक्चर का वैल्यू इतना नहीं होता। सो दिस इज द डिवाइडेशन। दो तरफ का जो जनरेशन है, दो तरफ का जो आप बोलते हो ना कि कॉन्ट्रास्ट है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि स्लम के साथ साथ हाई रेज, और उसको डिवाइड कौन कर रहा है, यू नो ये। तो ये थॉट बहुत डिफरेंट थॉट्स हैं, सबके अलग अलग थॉट्स रहेंगे। वो चलती बोट में मैंने पैनोरामा शूट किया था। आपको तो मैंने दिखाया था ना इतना जो शॉट था, कैसे उसको ये करते हैं, बट आपको ये नहीं दिखाया था कि इतना बड़ा जो आइडल है उसको आप समंदर के अंदर कितने लोग ले जाते हैं। जैसे कितने लोग उसको समंदर के अंदर पानी में खींच के तैर के लेके जाते हैं, ओके।
एज माय अर्ली डेज जब मैं शूट करता था। और इसका मैंने काफी कवरेज किया है, इसका स्पेशल इवेंट्स में काफी कवर करता था फरहान अख्तर जी का। तो उसका जो बैंड है ना मर्द, उस इवेंट को मैं काफी कवर करता था। स्पेशल ये था कि मैं स्पेशल परमिशन था मुझे कि मैं कवर करूँ उनकी सारी इवेंट्स। बाकी किसी को अलाउ नहीं, मैं स्टेज पे मुझे अलाउ था। ये एक मेले का पिक्चर है, तो मुझे थोड़ा सा कुछ अलग बनाना था। मेले का पिक्चर तो सब शूट करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे कुछ कूद के थे, मतलब ग्रुप थे, बोले अंकल दिखाओ दिखाओ, सर दिखाओ दिखाओ, पिक्चर दिखाओ, क्या शूट किया, ये क्या। मैं बोला आप दौड़ के जाओ, सब कोई दौड़ के जाओ, उस ऊपर चढ़ो, जो जितना जल्दी चढ़ पाएगा, जो पहला चढ़ेगा उसको मैं पिक्चर दिखाऊंगा। तो सब अपना अपना भागे, सब अपना अपना भागे और उसके ऊपर चढ़ गए। तो जब वो भाग रहे थे, मैं पीछे से पिक्चर क्लिक कर रहा था। बाद में जब उतर के आए तो मैंने उनको पिक्चर दिखाया कि ये देखो, तुम जब मेरे को पिक्चर दिखा रहे बोल रहे थे, मेरे इस टाइम में कुछ पिक्चर शूट नहीं किया था, बट तब जब तुम भाग के चढ़ रहे हो तभी मैंने पिक्चर शूट किया। सो समटाइम यू हैव टू यूज योर आपका थोड़ा सा अलग माइंड यूज करना है कि मुझे पिक्चर बनाने के लिए कभी कभी स्टेज पिक्चर भी अच्छा लगता है, बट स्टेज हैज टू बी नेचुरल। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव स्टेज द पिक्चर एंड वो पूरा पता चल रहा है in the street. It's a common बाबा। ये पिक्चर आपको कैसा लग रहा है? इट्स वेरी, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एवर शॉट जो मैंने मुंबई में शूट किया था, जब मैंने मुंबई में कदम रखा था। ओके, बिकॉज जब मैं मुंबई में कदम रखा था तभी दैट टाइम आई वाज वेरी क्यूरियस टू शूट पैनोरामा, और मैंने ये पैनोरामा शूट किया था। ये लाइट हाउस से लेके अपना गेटवे ऑफ इंडिया, ओके, सो वहां तक कितने बोर्ड्स रहते हैं, कितने प्राइवेट मतलब यार्ड्स रहते हैं, ये शूट किया था। और इसका क्वालिटी ये है कि मैं जब उसको जूम करूंगा तब आपको पता चलेगा। मैं जूम करता हूँ, देखिए आप एक बार देखते रहिए, आप कहीं पे भी जाइए पूरा आपको दिखाई देगा। इवन आपको यहाँ तक और जूम कर, और जूम नहीं हो रहा है, हो रहा है। आपको एक एक डिटेल्स मिलेगा यहाँ पे। एंड ये हैंडेड शूट है, वहाँ पे अलाउ नहीं था। और मैंने मतलब इसको सैंडविच बना के फिक्स किया है इमेज को विथ सैंडविच। सैंडविच मतलब क्या होता है कि जैसे लेयर बाय लेयर मैंने रख के इसको मर्ज किया है पिक्चर को, ऑटोमेशन में नहीं यूज किया। कितने सारे एक्टर एक्ट्रेस सबका यार्ड यहीं पे रहता है, सारे यार्ड यहाँ पे दिखता है आपको। ये आपका मतलब डॉक है, यहाँ पे जितने भी हमारे सबमरीन्स हैं गवर्नमेंट के, नेवल के, उसके डॉक्स हैं, तो ये आपको सब दिख रहा है। सो यू हैव टू ट्राई सम टाइम। आप इस टाइप के पिक्चर्स क्रिएट करने के लिए मजा आता है, लाइक खुद के वो मतलब एक शौक पूरा होता है इसमें। अगेन maybe we are running out of time, right? Is that okay? Can I take a few more minutes? Please continue, no problem. Please, कोई बात नहीं। Okay, so this picture I have taken in जैसे बाल ठाकरे जब एक्सपायर कर गए थे उनका फ्यूनरल में, ओके, फ्यूनरल हो रहा है। तो ये फ्यूनरल का पिक्चर है बाल ठाकरे जी का। तो हम लोग यहाँ पे क्या था, इतना भीड़ था कि कांट इमेजिन। एंड ये शिवाजी पार्क में फ्यूनरल हुआ है उनका, और पार्क है तो आजू बाजू कुछ है नहीं। ऑलराइट, सो जो माइक का टेंट होता है, जो टेंट दिख रहा है ना आपको, ऐसा टेंट है,
ये टेंट के ऊपर हम लोग ये एक एक पाइप के ऊपर चढ़े हुए थे सारे जर्नलिस्ट, मैं भी एक पाइप के ऊपर बैठा हुआ था। यू कांट इमेजिन, यू कैन थिंक दैट वे कैसे हम लोग इसको कवर किया। अदरवाइज आई कांट गेट द टॉप शॉट्स, थोड़ा सा हाइट से मुझे नहीं मिलेगा, इसका सर उसका सर मिलेगा, बट इसके ऊपर चढ़ने के बाद ये व्यूज मिला, एटलीस्ट इतना व्यूज मिला। और उसके साथ साथ आई लकीली मुझे एक ये ऑप्शन मिला कि ये फ्यूनरल किसी का भी हो सकता है, बट लकीली मुझे क्या हुआ कि एक कैरिकेचर और एक मतलब ये पोस्टर जो भी है बंदा लेके उसको घूम रहा था, और वो पेड़ के मतलब जो डंडा के ऊपर मैं बैठा हूँ वहां से मुझे दिख गया, और मैंने उसको क्या किया, थोड़ा सा टेली करके शूट किया, ओके, विथ फोकसिंग हियर। बट ये थोड़ा ये दिख रहा है कि जस्ट एज ए नरेशन क्या बोल सकते हो, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस है, उंगली ऊपर रखा हुआ है, बोल रहा है आई एम इन हेवन और व्हाटएवर इट इज, ओके, मैं ऊपर गया। सो आप नरेट कर सकते हो इस इमेज को उस हिसाब से। सलमान खान ड्यूरिंग माय आई फर्स्ट कवरिंग, तो ये क्या होता है कि बीच बीच में आपके वेनिटी वैन में आके वो मतलब स्मोकिंग वोकिंग करता रहता है, तो हम लोग पीछे खड़े थे, तो हमने इसको शूट किया स्मोकिंग करते हुए, तो वो बुला लिया, उसका सिक्योरिटी गार्ड हमको पकड़ लिए, बोले आओ आओ आओ, ओके, कैमरा देखा और इमेजेस सारे इमेजेस को डिलीट कर दिया। तो क्यों डिलीट किया, झगड़ा हो गया हमारा हम लोगों का उनके साथ। तो हम लोगों का काफी एक्टर के साथ झगड़ा होता था, ओके, काफी एक्टर्स थे, हम लोग जर्नलिस्ट और एक्टर्स का हमेशा झगड़ा होता है। तो उसने सारे इमेजेस डिलीट कर दिए, उसकी सिक्योरिटी ने डिलीट कर दिए। तो फिर हमने बोला कि अगर तुमने डिलीट किया तो हमको कुछ तो पिक्चर दोगे, तो बोला ठीक है, बिना स्मोक का आप शूट करो जो शूट करना है। तो फिर हमने जस्ट उसको लेके गए साइड में, ऐसा पासिंग लाइट मिल रहा था उसका जो वेनिटी वैन से, और आई जस्ट क्लिक दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स। सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड फॉर। ये उसी टाइम का शो का पिक्चर है। And this is another street of Kumbh. So regularly I cover Kumbh Mela. मैंने 2013 में भी कवर किया था, 2018 में भी मैंने कवर किया था, 17 में, सॉरी 17 या 18 था जो अभी रिसेंटली जो हुआ था, ओके। तो ये वही था, ये एक स्टोरी पिक्चर है, मे बी फाइनेंशियल बजट, फाइनेंशियल बर्डन आप बोल सकते हैं। सो ब्रंच हमारा मैगजीन है, मैगजीन के लिए शूट करना था। फाइनेंशियल बर्डन क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, पैसा है, ये वो है, एंड वी डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू हैंडल दिस। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट, एक ग्लास, कांच का ग्लास रख के उसके ऊपर सारा मैंने पैसे वैसे ये क्रेडिट कार्ड ये सारा रखा। देन जो लड़की है वो हमारे जो है ब्रांच की वो रिपोर्टर ही है, ये जो है वो रिपोर्टर थी, तो उसी को ही बोला कि तू ही इसमें अपना एक एक्सप्रेशन दे दे, एंड मैं साइड से एक ऑफ फ्लैशिंग करता हूँ, ओके, एक ऑफ फ्लैशिंग करके मैं वो जो ग्लास है कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम के नीचे सो के मैंने वो ग्लास के थ्रू उसको फोटो शूट किया था। ऊपर आप देख सकते हो सीलिंग है, लाइट्स हैं, ये सारे चीजें। तो देन द पिक्चर हैज गॉन टू द पेपर। ये जो मैंने बोल रहा था, सॉरी, यहाँ पे देखो इतने लोग थे, मतलब ये दिन का टाइम, ये रात का टाइम, हम लोग सुबह से बैठे हुए थे, जैसे मैंने बताया कि आप हिल नहीं सकते, आप बोले वो डंडे में बैठे हो तो सुबह से शाम तक बैठे रहो, मैं भी नीचे उतरो, थोड़ा ऊपर जाओ, ये करो वो करो, बट यू हैव टू कवर। इट्स अ वेरी टफ जॉब, बट यू विल बी एंजॉय, आई एम श्योर, अगर आप कोई करना चाहते हो या करते हो, बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट द लाइफ ऑफ ए जर्नलिस्ट। ये पिक्चर था, देखिए मैंने बोला था आपको, छपा था काफी। ये भी पिक्चर था जो मैंने आपको दिखाया था, ये पिक्चर, ये भी, एंड ये सब जो है ना पानी वानी में, सो हर कोई अलग अलग डिफरेंट एरिया में कवर कर रहा था। दिस इज अंधेरी एरिया में बंदे कवर कर रहा था, जो है विद्या बोल के, मैं कर रहा था बांद्रा एरिया में। सो यहाँ बांद्रा में कवर रहा था, माटुंगा समानेल्स, थाने समानेल्स कवर कर रहे थे। सो दिस इज हाउ द स्टोरीज आर क्रिएटेड। गली क्रिकेट, okay, so let me close this picture, maybe we are finishing here. Okay, the images has been done, but I'll show you the PPT again. There is two more topic. एक आपको मैं डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा और एक आपको मैं बता दूंगा व्हाट इज कॉपीराइट। सो कॉपीराइट के साथ और मेरा दो PPT है। So how much editing we have to do and what is syndication. So copyright rule is very, very crucial rule.
very important for every photographers, every journalist. Okay, कोई भी फोटोग्राफर है उसके लिए भी लगता है, कोई भी जर्नलिस्ट है उसके लिए भी लगता है. Whenever you shoot any portrait, anytime the model और कोई भी है वो आपको कॉपीराइट एक्ट में अंदर डाल सकता है. So better always carry your model release form with you. अब आप अगर कोई मॉडल का साथ शूट कर रहे हो, मॉडल रिलीज फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, या आप बना सकते हैं और उससे आप साइन करा सकते हो कि आप किस पर्पज के लिए उसका फोटो शूट कर रहे हो. ऑलराइट. अनदर थिंग इज कि कॉपीराइट एक्ट में क्या होता है कि हम लोगों को बहुत चीजें अलाउ नहीं होता है कि आप आपको दिखा सके. जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे मुंबई अटैक्स के इमेजेस हैं, ट्रिपल ब्लास्ट के अटैक्स हैं, नक्सल अटैक्स है, ये सारी चीजें मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज वो उसी एक्ट के अंदर आता है. इमेजेस मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, कुछ इमेजेस मैंने अनफॉर्चुनेटली बोल सकता हूँ कि मैंने लूज कर दिया है क्योंकि मैंने ले नहीं पाया मैं उनसे, क्योंकि मैं उस रूल्स के अगेंस्ट में था और कंपनी मुझे अलाउ नहीं किया लेने के लिए. जब मैं HT छोड़ा तभी मुझे अलाउ नहीं किया उन इमेजेस को लेने के लिए. कुछ इमेजेस मुझे मिल गए थे थ्रू, मतलब दोस्ती यारी के साथ आप बोलते हो ना, दोस्ती यारी के थ्रू मिल जाता है, वैसे मिल गए थे. सो आई हैव कपल ऑफ इमेजेस. So it's very crucial images always, and be careful about the copyright rule. जब आप street and journalism का काम करते हो या any kind of portraits काम करते हो, तो कभी भी कोई भी आपको इस रूल्स के अंदर ला सकता है. तो be careful always. पर इतना भी डरने वाली चीज नहीं होते हैं. So if you know the rules, then of course you can cross ahead. मतलब आप उसको क्रॉस कर सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो. अगर आप रूल नहीं पता है तो आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा और आप साइलेंट हो जाओगे. So please be careful. Another thing is like the syndication. So what is syndication? Basically all the images हम शूट करते हैं कभी कभी बेचने के लिए, तो जो बेचते हैं उसको हम syndication बोलते हैं. इवन द मीडिया सेगमेंट में भी उसको syndication बोला जाता है. वो syndication के लिए ही फोटोग्राफी करवाते हैं. जैसे आपने पूछा था कि आप इमेजेस को रॉ में शूट करते हैं या जेपीजी में, तो लेट मी टेल यू few pictures we always shoot on raw because हमको syndication के लिए शूट करना पड़ता है. हमको फोटो प्रिंट में आएगा नहीं आएगा we don't know. जैसे मैंने बोला था एक इमेज का वैल्यू एक दिन का होता है, अदरवाइज अगले दिन उसका कोई वैल्यू नहीं है. जैसे मैंने बोला था कि अगले दिन में भी बारिश होगा नहीं होगा, आप प्रिडिक्शन नहीं ले सकते ना, तो आप इसको कैसे आप इसको इमेज में छाप दोगे. बट आज हुआ है मतलब आज का ही प्रिडिक्शन है, आज का ही पिक्चर है वो, अगले दिन का पिक्चर नहीं. मे भी अगले दिन दूसरा कुछ हो जाएगा, अलग टाइप के क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, मे बी अलग टाइप के झगड़े होंगे, अलग टाइप के पॉलिटिकल रैली होंगे. सो इसके लिए एवरी इमेजेस हैज वन डे फॉर प्रिंटिंग, बट उसका जो सिंडिकेशन वैल्यू है वो लंबा टाइम तक होता है. और वो बेचने के लिए कंपनी ऑलवेज हाई रेजोल्यूशन कैमरा यूज करता है. और दूसरा चीज है कि रॉ शूट करने के लिए हमको इंसिस्ट किया जाता है कि हम रॉ शूट करें. जेपीजी हम शूट करते हैं जब हमको पता है कि इमेजेस का कुछ वैल्यू नहीं है ज्यादा, तब हम ऑटोमेटिक कैमरे को जेपीजी मोड पे ले आते हैं. और जब हमको पता है कि यार ये बहुत क्रूशियल शॉट्स है, ओके, तो हम आपको उसको रॉ में शूट करते हैं. जैसे सपोज मान लो हमें अटैक हुआ, ब्लास्टिंग हुआ, ओके, कहीं पे कुछ हुआ, तो वो इमेज शॉट्स को हम क्या करते हैं, रॉ में शूट करते हैं. कोई एक्सीडेंट है, कोई पॉट होल्स है, वाटर है, ये सारी चीजों को हम लोग रॉ शूट करते हैं, जेपीजी शूट करते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा कुछ. देन एग्जाम्पल के जैसा मैंने बताया, पूरे एग्जाम्पल में जैसे क्या होता है कि देखो आपको मैं दिखाता हूँ एक दो एग्जाम्पल. ये मेरा एक पिक्चर है, मैंने ये सेंटा क्रूज पे शूट किया था. यू कैन सी लॉट ऑफ इमेजेस मेरे गेटी इमेजेस में आपको मिलेंगे. तो गेटी में अगर आप सर्च करोगे मेरे नाम का, आपको लॉट ऑफ बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे. तो ये इमेज को कितना 23,000 रुपए में बिक रहा है ये इमेज लार्ज साइज में. सोचो, तो 23,000 रुपए में अगर इस कोई भी बंदा इसको खरीद के प्रिंट कर सकता है, तो गेटी इमेज इसको बेच रहा है. और ये मेरा ही पिक्चर है. तो कौन, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए शूट किया था, गेटी इमेज उसको बेच रहा है. और ये क्या है, जब ये नया फ्लाईओवर बना था बॉम्बे में, 4-वे फ्लाईओवर इनॉग्रेट नहीं हुआ था, उससे पहले इसको कवर करना था और मैंने इसको कवर किया था. और एक हाई वेज बिल्डिंग ऑलमोस्ट 50 के करीबन होगा, और उस पर वो आधा बिल्डिंग बनाया नहीं था, वो बिल्डिंग बना नहीं था, उसमें लिफ्ट नहीं थे. हमने वो सिक्योरिटी गार्ड को पैसा वैसा खिला के उसमें चढ़ के उतना ऊपर चढ़े थे और उसको शूट किए थे. और इतना ऊपर चढ़ के शूट किए. और स्पेशली अगर हम फ्लैट शूट करते तो मजा नहीं आता, इसलिए हमने स्पेशली इस पे फिशाई लेंस लगाया था 16 mm का. और 16 mm फिशाई लेंस के साथ ये पूरा थोड़ा सा क्रिएटिव बन गया.
जानबूझ के शूट किया था इवनिंग टाइम में, ताकि लाइट जले तो और मजा ड्रामा आए, इवनिंग ब्लू आवर हो तो और मजा आ जाए, ब्लू आवर का शॉर्ट्स भी दिखने लगे। तो दिस इज द पिक्चर। लाइक और भी पिक्चर हैं, सो अगर आप बोलोगे तो ये शायद सिंडिकेशन एक दो बहुत सारे पिक्चर है, मैं जो 2-3 आपको प्रेजेंटेशन के लिए दिखाया था, दिखा रहा हूँ। जैसे ये पिक्चर था, ओके, ये पिक्चर है। सर गुड इवनिंग सर, मैं श्रीमंत बोल रहा था। हाँ जी प्लीज। सर फोटोग्राफ्स तो एकदम एक्सेप्शनली, दीज आर ऑल रियली ग्रेट कलेक्शन सर। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग सर। कुछ एक पूछना था सर, डू यू बिलीव, मतलब जैसे आप सोनी के लिए सर वर्क करते हैं, तो आप नॉर्मली सर कौन सा लेंस में, वाइड एंगल लेंस में ही शूटिंग करते हैं, या थोड़ा कैमरे के बारे में सर बताएं थोड़ा सा, अगर 2 मिनट होगा टाइम सर। Definitely. See, first of all, I believe mostly shoot on 24-70. Okay. I believe one mostly the high resolution camera. मुझे जो मेरा type of choice है मैं बताता हूँ. There is a lot of choice according to the budget and the pocket size. बहुत सारे चीजें होते हैं, ठीक है. So मैं mostly मेरे माइंड में हमेशा सिंडिकेशंस को, इमेज को स्टोर करने के लिए फ्यूचर के हिसाब से सोच के शूट करता हूँ, ताकि वो लंबा टाइम तक चले. तो अगर मैं सपोज मान लो 10 मेगापिक्सल में शूट करूंगा, 12 में शूट करूंगा, तो मेरा उसका एक लिमिट फीचर है, उसके बाद उसका फीचर नहीं है. तो इमेज का मैंने फ्यूचर बहुत लंबा है, बट उसका सिंडिकेशन वैल्यू नहीं होता है. तो इसके लिए क्या होता है कि मैं ऑलवेज चूज करता हूँ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर, भले वो छोटा चीज हो या बड़ा चीज हो, ठीक है. तो मैं हाई रेजोल्यूशन, जैसे कि अभी मैं फिलहाल 7R4 यूज कर रहा हूँ, जो 61 मेगापिक्सल है. अर्लियर 7R3 यूज करता था, जो 42 मेगापिक्सल है, ठीक है. सो इससे मैं ज्यादा यूज करता हूँ. आई डोंट नीड हाई स्पीड. इवन आई शूट बर्ड, आई एम इनटू बर्ड फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, as well as travel photography, but I don't require a lot of speed, as I know that अगर टाइगर आपको दिख रहा है, मतलब आप 10 फ्रेम पर सेकंड में भी शूट कर सकते हो. अगर नहीं दिख रहा है तो आप कभी शूट नहीं कर सकते. ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई टाइगर को मुझे 30 में स्पीड होने से ही मैं शूट करूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. या ऑफ कोर्स यू नीड स्पीड फॉर बर्ड फोटोग्राफी. अगर बर्ड के लिए आपको स्पीड जरूरत होता है, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ. मे बी डिफर टू अदर कि मे भी कोई टाइगर को भी 20 फ्रेम पर सेकंड में भी शूट कर सकता है, बट जब वो आपको सामने आता है, मतलब वो रिलैक्स है. ही इज द किंग ऑफ द जंगल. ओके, वो कंप्लीट रिलैक्स है, भले आप एक्साइटेड हो, बट वो एक्साइटेड नहीं है, ठीक है. तो इस हिसाब से मेरा सोच है. तो मैं मेगापिक्सल इसलिए बढ़ाता हूँ, रादर मैं स्पीड को कम करता हूँ. और ओके, और मैं 24-70 ज्यादा यूज करता हूँ मोस्टली. जब ऐसे कोई स्पेशल शॉट्स है तो वाइड एंगल रखता हूँ मैं 16-35. उससे ज्यादा वाइड एंगल में बहुत ही रेयर यूज किया हूँ आज तक, ट्रायल बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, बट मैं रेगुलरली ज्यादा नहीं काम करता ज्यादा वाइड पे. 16-35, 24-70 इज माय फेवरेट लेंस, ऑलवेज मैं कैरी करता हूँ. उसके बाद तो अगर मैं जैसे वाइल्ड लाइफ में जाता हूँ तो टेली लेंस यूज करूंगा. अगर नॉर्मल में जाऊंगा तो मैं 70-200 यूज करूंगा. आई एम नॉट अ वेरी बिग फॉन्ड ऑफ पोर्ट्रेट लेंस. आई एम नॉट अ वेरी बिग फॉन्ड ऑफ, मतलब जो ब्लॉक लेंस है ना, उससे ज्यादा मैं इतना फॉन्ड नहीं हूँ, मुझे इतना मजा नहीं आता. बेबी उसका क्वालिटी अच्छे होते हैं, बट मेरे जो काम है, मेरा जो स्टाइल है, उसमें मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते. ओके, क्योंकि बहुत फास्ट काम करना है, तो ब्लॉक लेंसेज कभी कभी मुझे धोखा दे देते हैं. उसके लिए क्या है ना, 24-70 बहुत वर्साटाइल लेंस होता है. और आइडियली क्या है, उसमें डिस्टॉर्शन भी नहीं होते हैं. 70 में भी कवर करो, 24 में भी कवर करो, तो दैट इज always perfect for me. All right. And editing part में very short editing part में there is only मैं और आपका 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट लूंगा. So editing part में we are I'm the guy who believe on editing. Okay. So मैं editing believe करता हूँ. अगर एक फोटोग्राफर को एडिटिंग आता है, मतलब he will take his level another level. उसका जो फोटोग्राफी लेवल है उसको एक अनदर लेवल तक पहुंचा सकता है अगर उसको एडिटिंग अच्छे से आता है. तो आई इंसिस्ट, अगर किसी को एडिटिंग नहीं आता तो वो एडिटिंग सीखे, बिकॉज दिस इज द जनरेशन यू नीड एडिटिंग. ओके, इसके लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, बट इन एडिटिंग में मैनिपुलेशन को मैं सपोर्ट नहीं करता. बट डजिंग, बर्निंग, रॉ प्रोसेसिंग, कलर प्रोसेसिंग,
ओके स्प्लिटिंग, ये सारी चीजों को मैं सपोर्ट करता हूँ ऑलवेज, अदरवाइज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द रिजल्ट। जैसे हम लोग नाइट स्टेप करते हैं, एस्ट्रो करते हैं, जो तुमको दिखता है वो शूट नहीं होता है और उसको बिना एडिटिंग का आप कवर नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में एडिटिंग जरूरत है, मानो या ना मानो, दैट इज ट्रू, एंड एडिटिंग इज द एसेंशियल पार्ट फॉर आवर फोटोग्राफी। ओके, सो एडिटिंग में बिलीव करता हूँ, बट जैसे मैंने बोला मैनिपुलेशन, आई डोंट बिलीव ऑन मैनिपुलेशन, और एज ए जर्नलिस्ट वी आर नॉट अलाउड टू बी डू द मैनिपुलेशन वर्क। आप डॉजिंग बर्निंग एडिटिंग में सब कुछ कर सकते हो, सब अलाउ होता है जर्नलिस्ट में, बट मैनिपुलेशन नहीं होता है। आप इसका काट के वहां लगा दिया, उसका काट के यहाँ लगा दिया, यहाँ पे क्लाउड नहीं था आपने क्लाउड भर दिया, ये सारी चीजों को अलाउ नहीं करते। और उसी प्रिंसिपल के हिसाब से मैं चलता हूँ, मेरा जो आगे का वर्क भी होता है या मैं जिसको गाइड भी करता हूँ उसी प्रिंसिपल पे गाइड करता हूँ, ताकि उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट एसेंशियल होता है एडिटिंग। Alright, so last but not the least, just go through a small documentary, then we'll be finished here. Okay, so maybe sorry, I have taken a lot of time. मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया आपका, 4:30 था, मैंने 2 घंटा ले लिया, because the subject is very large subject. नहीं सर, ठीक है, क्या आगे बात बार we are learning sir, we are learning sir, don't worry for time. ये 2 घंटा नहीं होता तो कहाँ दिखने को मिलता है ये सब? This is a photo story which is actually मैं इस पे अभी भी वर्क कर रहा हूँ, ओके, एंड ये मेरा 3 साल का काम है, और मैं 3 साल का काम, आपको लगेगा कि बहुत नेचुरल है, सिंपल है, बट मैं क्या इसको ओवरराइट करता रहता हूँ, मैं उसको ओवरराइट करता रहता हूँ। ठीक हो, सरोज का वेबिनार चल रहा है, मैं 10 मिनट बाद शायद फ्री हो जाऊंगा, कल करूंगा। थैंक यू। सो ये एक स्मॉल डॉक्यूमेंट्री है, काफी लोगों ने इसको देखा भी होगा, कवर भी किया होगा, ओके, शूट भी कर सकते हो। ये बनारस का है, जिसको हम बोलते हैं ना आफ्टर डेथ हाउस, लोग यहाँ पे मरने के लिए जाते हैं, ठीक है, द वे, मतलब जो बोलते हैं ना, द वे टू हेवन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जाके मरेंगे तो उनको हेवन मिलेगा, उनको मतलब वो अब सीधा हेवन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द हाउस जो बहुत सारे बनारस में आपको मिलेंगे। तो बेसिकली दिस इज द पंडित जी हैं, वो पंडित जी यहाँ पे वो हाउस चलाते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं मरने के लिए, हम जाते हैं हॉस्पिटल जिंदा होने के लिए, बट लोग यहाँ पे आते हैं मरने के लिए। यहाँ पे अगर मरेंगे, ये काशी विश्वनाथ का है, तो यहाँ पे अगर मरेंगे तो वो तो मुक्ति पा जाएंगे। सो दिस इज हाउ द पीपल बिलीव, ओके। सो ये उसका घर है, उसके घर में वो ऑपरेट करते हैं, ये है पंडित जी। यहाँ पे लोग आते हैं, सो यू कैन सी देयर इज ए 4th जनरेशन इन दिस पिक्चर। आप देख पा रहे हो 4th जनरेशन इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। वो लेडी है, वो मरने के लिए यहाँ पे लेके आया गया है। मैं इंटेंशनली पिक्चर को थोड़ा सा डिफरेंट शूट किया हूँ। दीज आर ऑल डार्क रूम, बहुत ही अंधेरे होते हैं, इतना अंधेरे होते हैं, वहाँ पे एक दिया जलता है, विंडो से थोड़ा बहुत लाइट आता है, पर मैंने इंटेंशनली इसको स्लो सा शूट किया ताकि थोड़ा सा ब्लरिश लगे, थोड़ा क्रिएटिव लगे, क्योंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट्री है और मैं इसको रिप्लेस करता रहता हूँ। अगर मैं अभी नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, मुझे कुछ अच्छा पिक्चर मिल जाएगा तो मैं उस पिक्चर को इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, ओके, क्योंकि ये मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो 1-2 इमेजेस में मेरा बच्चा है, बट वो पिक्चर में मैंने ले लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय इमेजेस बिकॉज ऑफ दिस हार्ड डिस्क क्रैश एंड ऑल। सो इसके लिए मेरा वो पिक्चर चला गया। सो जो मैंने स्टोर किया था वो है मेरे पास, ओके। सो you don't believe that this picture has taken in RX10 सोनी का एक कैमरा आता है, ओके, तो RX100 RX10 कैमरा आता है, उस पे दिया गया ये पिक्चर, ओके, इन द लो लाइट सिचुएशन। तो द लेडी जो बुढ़ी है वो यहाँ पे आए हैं, उसका नेक्स्ट जनरेशन उसका सेवा कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट जनरेशन है, देन ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो भी आके वहाँ वेट कर रहा है कि कब वो बूढ़ी मरेगी या जो भी है, व्हाटएवर इट इज, ओके। थोड़ा सा इंटेंस है, लो लाइट है, इमेज आने तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेसर है, हाँ। देन दिस इज अनदर पिक्चर, आप देख सकते हो ऊपर तो थोड़ा सा डार्क में हल्का सा दिख रहा है, उसका बेटा बैठा हुआ है वहाँ पे, थोड़ा सा ये करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सैड मूड में है। उसकी वाइफ है, वो बुढ़ा मरने को आया है यहाँ पे,
and I have also taken care of this, prospective slides, sets, okay, patterns, सब कुछ मैंने वहाँ पे जितना हो सकता है, whatever possible, कंपोज किया है. और वेरी लिमिटेड टाइम होता है वहाँ पे जाने के लिए, शूट करने के लिए, बिकॉज दे डोंट अलाउ टू शूट. और आई हैव स्पेशल कॉन्टैक्ट, तो मैं स्पेशल कॉन्टैक्ट के थ्रू अंदर जाता हूँ बीच बीच में. सो बनारस में जितने मीडिया वाले हैं, दे आर क्वाइट वेरी क्लोज टू मी, तो वो लोग मुझे ले जाते हैं, उनके थ्रू ले जाता हूँ, बिकॉज सिंस आई एम नॉट राइट नाउ इन मीडिया, आई मीन सोनी राइट नाउ, सो स्टिल द ओल्डर कॉन्टैक्ट्स ऑलवेज हेल्प, द फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प ना. तो वो ले जाते हैं मुझे उनके थ्रू से, तो मैं इसको शूट करता रहता हूँ. ओके, सो शी इज प्रेइंग कि भाई जितना जल्दी हो गए, अगर वो प्राण जाएगा तो फिर वो लोग घर जाएंगे. तो समटाइम ऐसा भी होता है कि वो लोग वहाँ पे आते हैं मरने के लिए, बट समटाइम क्या होता है कि उनका एक लाइफ टाइम पीरियड होता है कि 10 दिन के अंदर अगर वो नहीं मरा तो उनको वहाँ से विड्रॉ कर दिया जाता है, वो चले जाते हैं वापस अपने घर. फिर जब उनको लगता है कि देयर इज अ टाइम टू हैव टू गो, फिर उनको लेके आ जाते हैं. तो ऐसा होता रहता है. ओके, सो हियर मैंने कंपोज किया, यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड था, इसको सिलोएट शूट किया मैंने जानबूझ के, यहाँ पे लाइट ऐड नहीं किया, बट यहाँ पे भी डार्क जा रहा था, तो मैंने क्या किया, मोबाइल टॉर्च से इसको टच मारा और थोड़ा सा लाइट उनके चेहरे पे मैंने ये किया ताकि वो सेपरेशन आए. देन वो भागवत गीता पढ़ते हैं उनके साथ हमेशा, ताकि जब वो लास्ट मोमेंट में भागवत गीता से जैसे तुलसी पानी देते हैं, ये सब देते हैं ना, ये भागवत गीता पढ़ रहे हैं ताकि वो सुने वो और उसका प्राण जाए. ठीक है. देन यहाँ पे आता है बॉडी, जो वहां पे मरने के बाद जो बॉडी यहाँ पे आता है, बीच का जो पार्ट है वो एक्चुअली आई मिस्ड इट. ओके, सो दिस इज मेरे पास कुछ इमेजेस है बट दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट, and the best images I lost that images, so that's why I have to cover again and again for to cover that how they take care, how they take the body, and वो बीच बीच में लेके आते हैं, कहाँ से कैसे लेके आते हैं, उसके ऊपर एक और 2-3 इमेजेस, ज्यादा नहीं क्योंकि इट्स अ फोटो स्टोरी, तो 1-2 इमेजेस जो बहुत ही स्ट्रांग हो तो वो फिर हो जाएगा. ओके, व्हाट दे डू हियर, लाने के बाद वो क्या करते हैं, पानी में उसको नहलाते हैं. नहलाने के बाद क्या होता है कि नहलाते हैं तो क्या होता है, इसके बाद उसको बर्निंग करते हैं. बट यहाँ पे स्टोरी अलग है. नहलाने के बाद क्या होता है कि जो बर्निंग करते हैं, तो ये जो धो रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली सोना चांदी जो रहता है बॉडी में या कोई को छोड़ दिया उसको वो फिल्टराइजेशन कर रहे हैं. अगर वो ये जो कोयला में है, ये सब में वो फिल्टराइजेशन करते हैं, अगर उसको उनको कुछ मिल जाए. तो ये उसी का ही स्टोरी है, बट थोड़ा सा एड ऑन स्टोरी है. फिर उसके बाद देन द बर्न इट. ओके, द बर्न इट, देन द शॉर्ट्स. मेरे पास एक सिंपल शॉर्ट्स था, बट सडनली आई फाउंड इन द नेक्स्ट विजिट कि वे यहाँ पे एक ब्लैक काउ के साथ मुझे मिला कंपोज करके. ओके, तो मैंने क्या उसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ. नेक्स्ट टाइम में भी और स्ट्रॉन्ग इमेज होगा तो मैं इसके साथ और रिप्लेस कर दूंगा. दिन द नाइट, क्योंकि वो डे नाइट चलता है वहाँ पे, बोलते हैं ना जो आग जलता है वो डे नाइट चलता रहता है, तो आई हैव टू शो नाइट आल्सो, इट्स नॉट लाइक द ओनली डे. नाइट में भी वो सोच चल रहा है, वो मतलब इमोशंस चल रहे हैं, इमोशन सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, फ्यूनरल चल रहे हैं. So this is what the funeral was. Okay, then the Ganga, okay, then the temples, the location जहाँ चल रहा है ये. So this is just an image. Maybe it will be, क्योंकि ये कुछ बच गए थे इसलिए मैंने इसको डाल दिया है, but it will be covered up. This is another side light. मुझे अच्छा लगा पिक्चर. मतलब आफ्टर इमर्शन, जो मतलब आफ्टर फ्यूनरल के बाद जल जाता है, सब खत्म हो जाता है, देन वैसे खाली लाशें रह जाते हैं, मतलब खाली जो क्या बोलते हैं उसको, अब एक स्टोरी में इसको बनाओगे तो नहीं, ओनली रेत रह जाता है, ओनली क्या बोलते हैं उसको यार, एसेस रह जाते हैं. तो दिस आर ऑल एसेस पड़े हुए हैं. ठीक है, तो एक कहावत है ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, दैट्स नो पॉइंट. एंड द लाइट इज आल्सो वेरी क्रिएटिव, बहुत ही अच्छा लगा था. So this is hard actually to just to show you, nothing more. So I hope, do you guys have any queries? Then you are welcome. Thank you so much.
and I hope everyone is safe and doing very good during this pandemic situation. तो hope करता हूँ कि सब सही रहे. जब भी chance मिलेगा, I will catch up together. Bye bye guys. Take care. Do you have any question? Then please ask me, and I will be happy to help you. And as I said in the earlier, that today is not a technical session. Might be if you want technical session, then we can conduct again for the technical round. But this is basically for the presentation purpose, so that's why I have done the presentation part. And sorry to say again. Yeah, please. सरोज सर, प्रदीप है. एक टेक्निकल क्वेश्चन था जो सोनी बॉडी एंड द लेंसेस, हाउ फार इट इज वाटरप्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट. थोड़ा हमको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे हम बारिश में इसको काम में लगा सकते हैं कि नहीं सकते हैं. जैसे कि बरसाना का होली हो गया या कुछ भी पानी का जहां पानी पड़ रहा है, ये चीज को हम कैसे, सोनी को कुछ लोग यूज नहीं करते हैं. Sony body and very lenses. Frankly, very frankly, these cameras are all, you can say they are all water resistant, not waterproof. Okay, आप पानी के अंदर डाल दोगे तो waterproof तो कभी काम नहीं करेगा. Say water resistant, some kind of splashes of water, some kind of snows, okay, some kind of colors, splashes, ये सारी चीजें कैमरास हैंडल कर सकते हैं. और we have already tested it in बरसाना, नंदगांव, जहाँ पे बहुत ही हेवी वाटर भी होता है, कलर भी होता है, और जो हमारा ड्राई पाउडर्स भी होते हैं जो बहुत ही बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही छोटे होते हैं, पाउडर होते हैं ना, तो कहाँ से घुस जाते हैं कैमरे के अंदर आप समझ में नहीं आता है. ओके, आप बहुत केयरफुली इसको शूट करते हैं. समटाइम वो उन लोगों का वाटर होली भी होता है, खाली पानी फेंकते हैं. तो इस सारी चीजों में कैमरा ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं. वी कंडक्ट वो फोटो टूर आल्सो इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड एवरीवन इज हैप्पी. द कैमरा डजंट डिच एंड इट वर्क परफेक्टली. इवन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी ये कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्नो में. ओके, और मतलब आपको अप टू -28 डिग्री में भी इसको टेस्टिंग किया गया है. आप इसको यूज कर सकते हो -28 डिग्री में, और हीट के टाइम पे भी 52 डिग्री में भी ये शूट होता है. वाटर फ्लैशेस के साथ आप बेसिक वाटर फ्लैशेस के साथ आप इसको काम कर सकते हो. जैसे कि एक दो इमेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, स्क्रीनशॉट लिए थे मैंने, उनमें जो मेरे पुराने पिक्चर है, जैसे कि वाटर फ्लैशेस है, ये स्नो पड़े हुए हैं नीचे, ऐसे ऐसे सिनेरियो में ये कैमरास काम करते हैं. जैसे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारा वाटर रेजिस्टेंस है, ये सारे पॉइंट्स वाटर रेजिस्टेंस है. इसका मतलब ये नहीं कि धो देंगे तो कैमरा ठीक हो जाएगा, वो देन इट विल बी लॉस फॉर यू. ओके, एंड जैसे कलर सिचुएशन में आप अगर काम कर रहे हो तो ऐसे कलर सिचुएशन में इतना कलर में डूबा हुआ कैमरा आता है. उसके बाद ये सारे क्लीन करके हम लोग रखते हैं सारे कैमरेज को. और उसके साथ साथ जैसे जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं वो सारे एरिया में हम जैसे बोला ना पाउडर्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, तो इस सबको कवर कर देते हैं. थोड़ा सा बेसिक केयर कैन हैंडल दिस कैमरा. इसका मतलब ये नहीं कि दे आर मतलब वेरी इतना सुकुमारी है, इतना क्या बोलते हैं उसको आप, कैमरा बहुत ही बहुत ही नाजुक है, ऐसा नहीं है. बहुत ही हार्ड एंड फास्ट काम करने के लिए, टॉप सिचुएशन में काम करने के लिए कैमरा डिजाइन किया गया है. बट वी नो दैट आवर लिमिटेशंस, कि आपको कितना लिमिटेशन में काम करना है. वो कोई भी कैमरा हो आप पानी में नहीं डुबाओगे विदाउट वाटर हाइसिस, राइट. कोई भी कैमरा हो आप धूल में उसको फेंक नहीं दोगे. तो वी नो दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस कैमरा. बट दिस कैमराज आर परफेक्टली फाइन. आप अगर पानी में भीगते हुए भी शूट कर लिए और दौड़ के आगे शूट करके फिर वापस अंदर आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इसका मतलब नहीं कि आप भीग के शूट कर रहे हो और कंटिन्यू शूट कर रहे हो तो फिर कैमरा प्रॉब्लम हो सकता है. तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में, मैंने बोला ना मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है वाटर. ओके, मैंने बहुत सारा बात आपको वाटर आप देखोगे तो वाटर के साथ मेरा, अगर आप गेटी इमेजेस में जाओगे तो वाटर के साथ मेरे हुए सब आपको देखने को मिलेगा. वाटर के साथ बहुत काम किया है मैंने, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. सो थैंक यू. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ऑलवेज. ओके, तो होप यू गाइज आर enjoy the session,
And thank you everyone. Thank you all the participants. Thank you all the organizers. Thank you Pradeep bhai, Siddharth bhai. Okay, so